تمام آنے والے معزز مہمانوں کو جو اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، جناب محسن مدھیانہ صاحب ایک ریناؤنڈ پرسنالٹی ہیں جنگ کی، جناب چودھری گلشیر احمد چدر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ برین آف پاکستان ہیں، ایئر فورس میں اپنے آپ کو منوایا، اس کے بعد سعودی گورنمنٹ میں اپنے آپ کو منوایا، 25 سال ماشاءاللہ وہاں پہ اپنی خدمات کو سر انجام دیا، جنگ میں ماشاءاللہ ایک بڑی ریناؤنڈ پرسنالٹی ہے جناب گلشیر احمد چدر صاحب کو، اس کے بعد جاوید چدر صاحب جناب ایس پی موٹر وے، بڑے بھائی کہہ سکتا ہوں، لگتے نہیں ہیں لیکن بڑے بھائی ہیں، ان کو ویلکم کرتا ہوں، اور چودھری مسعود احمد چدر صاحب کو جو کہ لینڈ ڈائریکٹر ہیں، بڑے بھائی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ساری کاوش ان کی ہے، بڑے بھائیوں کی ہے، چودھری محمود احمد چدر صاحب جو کہ ڈائریکٹر ایڈمن ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب طارق اسماعیل میو صاحب 25 سال کی رفاقت اور محبت پیار اور الحمدللہ آج اس پروجیکٹ کی الحمدللہ وہ شان اور جان بن چکے ہیں، ان کو ویلکم کرتا ہوں، ان کا کمپلیٹ تعارف بھی انشاءاللہ کروائیں گے۔ میرے بڑے ہی محترم چھوٹے بھائی ہیں، میں بالکل باوقار طریقے سے کہہ سکتا ہوں، ایکس بار پریزیڈنٹ جنگ جناب حیدر علی ناگا صاحب، ان کو بھی دل کی عطا کریں گے، اسے ویلکم کرتا ہوں۔ ایک کوسچن آپ سے کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ پنجابی دا شعر ہے، جیم جس درخت دا پھل کھائیے سک جائے تے انہوں کٹیے نہ، جنوں یار کہیے اندے نال رہیے، لوکی دین تانے تے انہوں چھٹیے نہ، جے کر پانڈ پریم دی چک لئیے، لگے بار تے انہوں سٹیے نہ۔ اس مکتبہ فکر کے ساتھ جنگ میں دوبارہ انویسٹمنٹ کی ہے، الحمدللہ اس کے ساتھ روٹ تھی، اس کے ساتھ تعلق تھا، اس کے ساتھ محبت تھی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع کیا۔ آج ہم یہاں پر کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں، ذرا آپ کی بڑی بھرپور توجہ چاہوں گا میں آپ دوستوں کی۔ دیکھیں پروجیکٹ بے شمار آپ کی لائف میں آئے ہوں گے، آپ نے اس میں کام بھی کیا ہوگا، آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے وہاں سے پیسے بھی کمائے ہوں گے، وہاں پہ پلاٹس بھی لیے ہوں گے، وہاں پہ کمرشلز بھی لیے ہوں گے، آپ نے اپنی پروفٹ مارجن بھی کمایا ہوگا، لیکن پاک ریزیڈنشیا ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ 2018 مئی میں جب ہم نے یہ رقبہ ٹرانسفر کیا، اس کے بعد سے اس کی فائل جمع کروائی محکمے میں، اور پھر اس کی لیگل ڈاکومنٹیشن فلفل کروائی۔ جب لیگل ڈاکومنٹیشن اس کی فلفل ہو گئی تو پھر انشاءاللہ ہم نے کام شروع کیا۔ تو میں نے سروے کیا تو جھنگ میں جتنے بھی پہلے پروجیکٹس تھے وہ مالکان خود بیٹھ کے سیل کرتے تھے، ایک پراپرٹی مارکیٹ یہاں پہ موجود نہیں تھی، جیسے گاڑیوں کی مارکیٹ موجود ہے، اسی طرح گولڈ کی مارکیٹ موجود ہے، اسی طرح اور دوسری مارکیٹس موجود ہیں، لیکن پراپرٹی کی کوئی پراپر مارکیٹ موجود نہیں تھی۔ تو میں نے سب سے پہلے تو یہ انیشیٹو لیا جنگ کی ہسٹری میں کہ الحمدللہ آپ کے لیے خوبصورت سی پراپرٹی کی مارکیٹ انٹروڈیوس کروائی ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ اس مارکیٹ میں آ کر جو آپ چوکے چھکے مارنا چاہتے ہیں آپ آ سکتے ہیں۔ دوسری بات، جب میں یہ مارکیٹ بنا رہا تھا تو مجھے بہت سارے دوستوں نے علیحدہ علیحدہ مل کے یہ ریکویسٹ کرنا شروع کی کہ نہیں ہمارا کنٹینر جو ہے یا ہمارا جو آفس ہے وہ فرنٹ پہ ہونا چاہیے۔ تو پھر میں پریشان ہو گیا کہ اب یہ کیسے کروں کہ سارے لوگوں کو فرنٹ پہ بٹھاؤں۔ تو اللہ نے ایک آئیڈیا ذہن میں دیا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا بڑا خوبصورت قانون ہے، سارے ہی قانون ان کے خوبصورت ہیں لیکن یہ بڑا ہی خوبصورت ہے کہ جب آپ اچھی سوچ، پازیٹیو سوچ کے ساتھ کسی کام کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں، سوچنا شروع کرتے ہیں، تو اللہ اس کے راستے بنانا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کے لیے وہ ڈائریکشن متعین کر دیتے ہیں، آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ جب سوچے تو پھر یہ آئیڈیا آیا کہ کچھ اس طرح بنا دیا جائے کہ سارے لوگ ہی فرنٹ پہ آ جائیں۔ آج الحمدللہ میرے جتنے بھی آتھورائز فیملی ممبرز ہیں، ڈیلرز ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بازو ہیں، میرے محترم ہیں، میرے مقرب ہیں، جنہوں نے مجھ پر 28 جولائی 2022 کو اعتماد کیا اور منیمم وہ 50 کروڑ روپے کی سیل کریٹ کر دی اسی دن جس وقت اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں نے ان سارے دوستوں کے آفسز فرنٹ پہ بنا دیا، ان کے لیے بھرپور کلیپ کیجیے گا۔ آج الحمدللہ وہ سارے دوست یہاں پر موجود ہیں۔ ایک اور بہت بڑی ڈیمانڈ آ رہی تھی مارکیٹ میں کہ جی پاک ریزیڈنشیا میں ہی پلاٹ کیوں لیا جائے، شہر سے دور ہے، ابھی اس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں ہے، لاٹ آف تھنگس نہیں دوستوں کے پاس۔ تو ذرا اس کنسپٹ پہ بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں دو ہی بڑے ادارے ہیں جن کو فادر آف پراپرٹی کہا جا سکتا ہے، ایک ڈی ایچ اے اور ایک دوسرا بحریہ ہے۔ تو کوئی بھی بحریہ اور کوئی بھی ڈی ایچ اے شہر کے قریب نہیں۔ ریزن یہ ہے کہ جو فیسلٹیز، جو امینٹیز، جو ششکیت، جو لیونگ سٹینڈرڈ آپ دینا چاہتے ہیں وہ شہر کے سینٹر میں یا شہر کے قریب دیے ہی نہیں جا سکتا۔ لہٰذا سوسائٹی بلڈ کر
کرنے کا ایک کنسپٹ ہے کہ آپ اپنے اس رش والے ایریے سے، اپنی فیکٹری سے، اپنے کاروبار والے ایریے سے، اپنے آفس والے ایریے سے، جہاں پر سارا دن آپ محنت کرتے ہیں، آپ وہاں سے رزق حلال کے لیے دو کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں سارا دن وہاں پہ کام کر کر کے، ڈیلز کر کر کے، تو اس کے بعد آپ کم از کم 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ اپنے ہوم سویٹ ہوم میں آئیں، اپنے فارم ہاؤس میں آئیں، اور آپ کو یہ احساس ہو کہ اب یار میں اس جو ٹینشن والی جگہ تھی یا اس جگہ سے میں یہاں پر شفٹ ہو گیا جہاں پہ سکون ہے، جہاں پہ میرے لیے میری بیلوڈ وائف جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں، اور وہاں پر آ کر آپ اپنے پچھلے سارے غم بھول کر اس کی امینٹیز کو انجوائے کریں، اس کے واکنگ ٹریک انجوائے کریں، اس کے پارکس انجوائے کریں، اس کے کمرشل زونز انجوائے کریں، شاپنگ سینٹرز کو انجوائے کریں، وہاں پہ ریسٹورینٹس کو انجوائے کریں، زو کی ایکٹیویٹیز کو انجوائے کریں، وہاں کے مساجد میں سکون کے ساتھ عبادات کریں، وہاں پہ اپنی انٹرٹینمنٹ کو بہتر کریں، وہاں کے اسکول اور کالجز کو انجوائے کریں، وہاں کی کمیونٹی کے ساتھ نئے نئے ریلیشن ڈیولپ کریں اور اپنا لائف سٹائل بہتر کریں، سکون والا کریں، اچھا کریں۔ یہ ہے بیسک کنسپٹ کہ وہ شہر کے قریب نہیں بن سکتی اتنی بڑی امینٹیز کے ساتھ کوئی بھی اچھا پروڈکٹ۔ ہم نے ریزیڈینشل جب پلاٹس یہاں پہ لانچ کیے، اس کے لیے ہم نے قیمت کے حوالے سے یہاں پہ پورے ایریے کا سروے کیا کہ یہاں کے لوگوں کے لیے اس پروجیکٹ کی اتنی بڑی امینٹیز کے ساتھ قیمت کیا رکھنی چاہیے۔ جب میں نے 2018 میں سروے کیا تو اس وقت مجھے 2 جھنگ میں بڑی سوسائٹیز جو اچھی خوبصورت بنی ہوئی تھی قدرے دوسروں کی نسبت، لیکن ایریا ان کا بھی کسی کا 28 ایکڑ تھا، کسی کا 40 ایکڑ کا، کسی کا 20 ایکڑ تھا، کسی کے پاس مین راستہ نہیں تھا، کسی کے پاس تھا، بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن اس وقت ان کا ریٹ جو ہے ایک کا 3.25 لاکھ روپے مرلہ تھا اور ایک کا 2.5 لاکھ روپے مرلہ تھا۔ تو میں نے کہا کہ چلیں دیکھتے ہیں، پھر ان کو وزٹ کیا۔ جب میں یہاں پہ لانچ کرنے لگا تو ان دونوں میں ریٹ، ایک میں 13 لاکھ روپے مرلہ اور دوسرے میں 11 لاکھ روپے مرلہ تھا۔ وہ آپ کے جھنکی ہیں۔ تو میں نے کہا جتنے میں یہ مرلہ دیتے ہیں نا، مجھے چاہیے اتنے میں 5 مرلے کا پلاٹ دیا جائے۔ تو میں نے الحمدللہ 210 فٹ مین بولے وارڈ کے ساتھ، جو کہ 2.5 سے 3 کلومیٹر تھرو آؤٹ چلنی ہے، اس کے ساتھ اس کے 3 لینز ایک سائڈ پہ، 3 لینز ایک سائڈ پہ، سینٹر میں اس کے سینٹر میڈین ہے گرین بیلٹ کے طور پہ، وہ بھی تقریباً 16 سے 20 فٹ پہ ہے۔ اس کے بعد ان بٹوین دا سروس لین اینڈ مین لین ہم نے ایک پیڈسٹرین وے دیا ہے جو کہ یورپین سٹائل میں ہے، ود لائٹ افیکٹس، شیڈو ٹریز کے ساتھ آپ اس کے نیچے واک کر سکتے ہیں تھرو آؤٹ۔ اگر کوئی پیدل ہے تو اپنے گھر جانے کے لیے ان شیڈو ٹریز کے ساتھ، لائٹس ایفیکٹس کے ساتھ وہ اپنے گھر تک پیدل جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر پارکنگ ہے 40 فٹ، اور اس کے بعد یہ جو کمرشل ہم نے دیا ہے، آج اناؤنس کیا ہے دوستوں کو، یہ کمرشل ہے۔ تو 210 فٹ مین بولے وارڈ اور اس پہ کمرشل اور اس کے سامنے پیڈسٹرین وے اور اس کو گراؤنڈ پلس 5 یعنی کہ 72 فیٹ ہائٹ تک آپ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں، اور فرنٹ اور بیک وہ اوپن ہو، تو پھر میرا خیال ہے اس کا ریٹ بھی بڑا مناسب ہو۔ بروشرز آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، اس پہ یقیناً دوستوں کی بڑی خواہش تھی، تو ہم نے آج الحمدللہ یہ 2 دن پہلے ان کو ایک کمرشل گفٹ کیا ہے، اور اب جھنگ والوں کے لیے ہے کہ وہ ان سے وہ گفٹ کس طرح حاصل کرتے ہیں اور یہاں پہ کیسے اپنی ڈیولپمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ کیوں یہاں پہ کمرشل اناؤنس کیا؟ کمرشل کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیا کمرشل کا مطلب دکانیں بنانا ہے؟ کیا کمرشل کا مطلب وہاں پہ کوئی شو روم بنانا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کانسیپٹ جو کمرشل کا ہے وہ یہ ہے کہ اس نئے شہر میں ہم برانڈز کو انٹروڈیوس کروائیں، اور برانڈز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کبھی اپنی ذاتی انویسٹمنٹ لینڈ پہ نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اپنے برانڈ کے لیے کام کرتے ہیں اور چیز کو رینٹ پہ لیتے ہیں، کیونکہ وہ ہیوی انویسٹمنٹ اس میں انویسٹ نہیں کرتے جو فکس ایسٹس ہوں، وہ رننگ میں لے کے چلتے ہیں چیزوں کو، اکانومی کو ریگولائز کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس کمرشل کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہمارا کنسیپٹ تھا، اور آج الحمدللہ ہم اس کنسیپٹ پہ پورے اترے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ڈیٹیل میں طارق اسماعیل میو صاحب جو ٹریئر ہیڈ ہیں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے، اور اب الحمدللہ ہمارے ساتھ ایز اے ایجوکیشن اور میڈیکل سٹی کے طور پر اور سپورٹ اکیڈمی کے طور پر، برانڈ کے طور پر وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 10 یونیورسٹیز وہ ڈیولپ کر چکے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم ایک برانڈ ولیج انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں کہ جو کمرشل کے دوست لے رہے ہیں، ریناؤنڈ برانڈز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائیں گے،
اور اس میں کوئی برانڈ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو صرف ایک آدھے شہر کا ہو، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں ان کی چینز ہوں گی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب آپ کا یہ کمرشل ان برانڈز کے پاس جائے گا اور اس سوسائٹی میں وہ برانڈز آئیں گے تو آپ کے اس ایریے کی کتنی ویلیو وہ بڑھے گی، اور یہاں پر الحمدللہ آپ کی پوری ڈویژن جو ہے وہ شاپنگ کرنے آیا کرے گی، اور یہاں پر ایک کیا میلہ اور کیا رونق ہوگی۔ آپ تو شاید دیکھ رہے ہو یا نہ دیکھ رہے ہو، میں تو وہ سارے معاملات اپنی آنکھوں سے الحمدللہ امیجن کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پلاٹس تو سارے بیچ رہے ہیں، ہم نے اس کو ویلیو ایڈیشن کے طور پر کچھ چیزیں انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہیں، کس طرح ہیں، کیسے ہیں۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ پہلے کی تھی سعودی جرمن ہاسپٹل کی، بلکہ میں نے نہیں گئی تھی، میرے بڑے بھائی محترم مقرب جناب گلشیر احمد چتر صاحب نے، جب ہم نے یہاں پہ انوگریشن کی تھی ڈیلرز کے آتھورائز ڈیلرز کے لیے 31 دسمبر 2022 کو، تو ہم نے ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر کی تھی یہاں پر، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر گلشیر احمد چتر صاحب نے اناؤنسمنٹ کی تھی، اور اس اناؤنسمنٹ کا ایک چھوٹا سا پورشن ہم نے الحمدللہ انگیجمنٹ کے طور پر چھنگ میں انٹروڈیوس کروا دیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی گلشیر چتر صاحب بتائیں گے، اور آگے جو وہ آ رہا ہے پاک ریزیڈینشیل کے ساتھ منسوخ ہو کے، اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل گپ شپ کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ بلا تاخیر گلشیر چتر صاحب اس کے بارے میں گپ شپ کر لیں، اور پھر اگلی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کرتے ہیں۔ بھرپور تالیوں میں ویلکم کیجیے گا جناب محترم گلشیر احمد چتر صاحب کا برین آف پاکستان، کھڑے ہو کر استقبال کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ برین آف پاکستان ایک ماڈرن ہاسپٹل سعودی جرمن ہاسپٹل گروپ ہے، جن کے 7 ہاسپٹل آلریڈی مختلف ممالک میں ہیں، جس میں جدہ، مدینہ شریف، ریاض، مصر اور نائجیریا، یمن، پاکستان میں بھی منصوبہ بلا رہے تھے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نے دعوت دی، انہوں نے بادشاہ سلامت کو کہا جی کہ ہمیں ہاسپٹل آپ ایک گفٹ کے طور پہ کریں، تو پرائیویٹ سیکٹر کے جو شیخ بدر جی ہیں انہوں نے یہ حامی بھری، اور وہ انہوں نے مجھے پاکستان میں اپنا نمائندہ بنایا، اور وہ تشریف لائے۔ جو پرپوزل تھی اس پرپوزل میں رانا ثناء اللہ کی طرف سے یہ گزارش کی گئی کہ یہ آپ اگر جھنگ، سرگودا، بکھر، لیا، ٹوبا اسے کیٹر کرنا چاہیں، کیونکہ الائڈ ہاسپٹل پہ بہت بوجھ ہو چکا ہے۔ میں نے انہیں پرپوزل بھیجی کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر 300 بیڈ کا ہاسپٹل پرپوزڈ ہے، آپ مہربانی کریں یہ ایک سینٹر بن جاتا ہے لیا، بکھر، ٹوبا، گوجرا اور فیصل آباد سے ادھر سرگودا اور اس کے درمیان۔ پرنسپلی وہ ایگریڈ ہوئے۔ میں نے انہیں ایک چیز بتائی کہ بھئی ہمارے جھنگ میں کینسر جن مریضوں کو آیا کہ وہ لاہور جاتے ہیں، انمول جاتے ہیں یا جناح جاتے ہیں، اور خاطر خواہ کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے، تو انہوں نے بڑی شفقت سے یہ کہا جی کہ آپ شروع کر دیں، تو میں نے اپنی بلڈنگ جو ہے وہ ٹرسٹ بنا کے ان کے حوالے کر دی ہے۔ تو اس بلڈنگ میں الحمدللہ ایک ماڈرن 25 بیڈ کا ہاسپٹل شروع ہو چکا ہے، جس کے اندر کینسر انکولوجی ہے، ریڈیالوجی ہے، اسی طرح پیڈس کا بچوں کا ہے، ماڈرن پیتھولوجی لیبارٹری لیب بن چکی ہے، ڈینٹسٹری آ چکی ہے۔ تو ہم نے ان لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے کیونکہ یہ بڑا پروجیکٹ ہے، اس کے لیے پوری فیزیبلٹی چاہیے، اویئرنیس چاہیے، پھر پروفیسرز لیول کے بندے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی رہائشوں کا بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ لکیلی موٹر وے بہت قریب ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت انڈر پروسیس ہے، اور مین وائل ہم نے یہ پروجیکٹ کل لانچ کر دیا۔ ہمارے دوست محسن مگیانہ صاحب بھی وہاں موجود تھے، ہمارے نہایت ہی اچھے دوست ڈاکٹر سید مبشر علی پروفیسر صاحب جو کہ کینسر کے ڈاکٹر ہیں، کل انہوں نے الحمدللہ ہمارے پلازے میں فری معائنہ کیا، اور ہر ہفتے کو وہ انشاءاللہ یہاں پر اویئرنیس کے لیے لیکچر دیں گے، گرلز کالج میں، یونیورسٹیز میں یا کسی اور ادارے میں اباؤٹ کینسر اویئرنیس، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ خود معائنہ کریں گے کینسر کے پیشنٹس کو ویکلی۔ جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں اسٹیج پر، ہمارے بہترین دوست، بڑے بھائیوں کی طرح شفیق شخصیت، ایک استاد کا درجہ، اور جھنگ کی ایک ریناؤنڈ پرسنالٹی، کیڈٹ کالج فار بوائز جھنگ کے چیئرمین، CEO، کرتے دھرتے روح رواں، اور جھنگ کے تعلیمی معیار کے لیے اس پوری الحمدللہ خاندان نے، اس پورے خاندان نے ایک پراپر محنت کی، اور یہاں سے
बहुत बड़े बड़े मामार माशाल्लाह इनकी एजुकेशन से निकले और आगे बढ़े और आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिसर्स और डॉक्टर्स और बहुत सारी पर्सनैलिटीज बने। तो मैं दावत देना चाहूंगा जनाब मोहतरम कमांडर सुहेब फारूक साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स के हवाले से जो फिजिबिलिटी थी वो कहाँ तक पहुंची उसके बारे में बताएं। अपना कमांडर सुहेब फारूक साहब भरपूर तालियों में वेलकम कीजिएगा। मैंने आज से 14-15 साल पहले यहाँ पर इस रोड पर आकर कैडेट कॉलेज के लिए 12-14 एकड़ जमीन उस वक्त खरीदी। कोई एक्टिविटी यहाँ नहीं थी, मोटरवे भी उसके बाद में आई और उस वक्त मैं सोचता था कि यहाँ कैडेट कॉलेज तो बन रहा है। बहुत सारे दोस्तों का ख्याल था रोड पर आप बहुत दूर जाकर एक ऐसी जगह अदारा बना रहे हैं, ये रोड पर कोई रश भी नहीं है, खास जगह नहीं है। लेकिन आज मैं 15 साल के बाद इस बात पर ही शुक्र अदा करता हूँ वो जो अल्लाह ने कहा है जो हर चीज पर कादिर है, इस तरह से गैर मामूली कीमती हीरे अल्लाह ताला तलाश कर करके इस रोड पर ऐसे लेकर आया है। मैं इस फैमिली का शुक्रगुजार हूँ 2-3 लिहाज से। मैं यहाँ चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री का भी सदर हूँ, तो सारे कारोबारी लोगों के साथ मुसलसल राब्ता रहता है। हाउसिंग स्कीमें जितनी भी बन रही हैं सबके साथ अजीजदारी ताल्लुक है शहर का। लेकिन ये जो चौधरी साहबान यहाँ तशरीफ लाए हैं ये बड़े मेरे नजदीक, मेरे कुछ अल्फाज अगर नामुनासिब हों, ये बड़े सरफिरे लोग हैं। हाउसिंग स्कीमों में हमारे यहाँ ट्रेंड ये चल रहा है कि कुछ थोड़े बहुते बयाने पकड़ाकर जमीन को मार्क करके और प्लॉट और फाइलें बेचनी शुरू कर दी जाती है। ये अजीब लोग हैं कि पहले जिला झंग के सबसे बड़ी जमीन का टुकड़ा जो है तमाम हाउसिंग स्कीमों में सबसे बड़ा टुकड़ा खरीद कर पूरे का पूरा ट्रांसफर करके और उसके बाद बैठकर पहली बात कि जी अब किसी को बेचना है। ये कारोबारी लोग मुझे उस एतबार से कारोबारी लोग नहीं लगते, खिदमत और मिशनरी लोग लगते हैं। मैं इनको जितना जानता हूँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे इस इलाके के लिए अल्लाह की नेमत की तरह है। अभी ये स्कीम शुरू नहीं हुई थी कि हाजी साहब मेरे पास भी वहाँ पहुंचे हुए थे। जैसे सऊदी जर्मन हॉस्पिटल को यहाँ लाने की तैयारी हो रही है और बहुत सारे मंसूबे मेयर साहब आपको बताएंगे, उसी तरह ही मुझे भी इन्होंने आकर कहा कि हम यहाँ चाहते हैं कि लड़कियों का एक कैडेट कॉलेज जो है वो पूरे पाकिस्तान के बच्चियां यहाँ पर आकर पढ़ें, उसको यहाँ पर बनाने की तैयारी की जाए, हम आपको जगह देते हैं। उस वक्त मुझे समझ आई कि ये अजीब लोग हैं कि ये प्लॉट बेचने से भी ज्यादा अंदर आकर रहने वाले को क्या क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए और इस इलाके पर इस हाउसिंग स्कीम का क्या असर होना चाहिए, ये उसकी प्लानिंग और उसकी फिक्र में पहले निकले हुए। और दूसरी बात फिर ये कि ये जेन्युइनली सिर्फ उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जिनको ये हाउसिंग स्कीमें और तालीमी अदारे और यहाँ की यूनिवर्सिटियां, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स और एक बेहतरीन लिविंग से इंटरेस्ट हो। ये जेन्युइनली एक बहुत सीरियस बिजनेसमैन है जो अपने काम के ऊपर मिशन के तौर पर लगे। मैं जरूर इस हवाले से ये रिकमेंडेशंस भी अपने तमाम दोस्तों को दे रहा हूँ कि मेरे नजदीक यहाँ पर रहना सिर्फ आपके उस मकान, उस बनाए हुई जायदाद का मामला नहीं है, ये आपकी यहाँ पर रहने के बाद आइंदा आने वाली नस्लें कैसे पढ़ेंगी और कैसे वहाँ पर उनको फैसिलिटीज मिलेंगी और आइंदा नस्लें आपकी कैसी हेल्थ की फैसिलिटी से गुजरेंगी, ये उस सब की फिक्र और उस सब की तैयारी साथ साथ चला रहे हैं। तो मैं अपनी दिल की गहराइयों से चौधरी मसूद साहब को, चौधरी सईद साहब को और बाकी तमाम भाइयों को, ये मेरा बरखुरदार यहाँ फैसल है, इनमें से एक एक फर्द को मैं जाती तौर पर शुक्रिया भी अदा करता हूँ। दूसरा, इनको ये जरूर यकीन दिलाता हूँ अपनी तरफ से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, अपने रोटरी क्लब दोस्तों की जानिब से, इंशाअल्लाह आलमी मेयार का गर्ल्स कैडेट कॉलेज भी और जो और तालीम के अदारे आप बनाना चाहें, हम आपके साथ पूरी कुव्वत के साथ खड़े रहेंगे और आपके साथ चलेंगे। यही इस इलाके की खिदमत का काम है। यहाँ मैं इस हवाले से भी जरूर कहना चाहूंगा, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका वो लहू क्या है। हम सब मिलकर एक ऐसी खूबसूरत बस्ती बनाने में अपना अपना
فرض اور اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالیں اور ڈالنا چاہیے، اور یہ ان کا میرٹ ہے اور ان کی پروفیشنلزم بھی ہے، خدا ترسی بھی ہے اور مشن بھی ہے۔ ہم چودھری صاحبان آپ کے اس مشن میں آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہر ممکن لحاظ سے میں آپ کو تعاون کا یقین دلاتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی اور باقی دوست بھی آپ کی ہر پلیٹ فارم پر بھرپور مدد جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ جی، بھرپور کلیپ کیجیے گا۔ اتنی خوبصورت، اتنی پرمغز باتیں الحمدللہ کمانڈنٹ سہیب فاروق صاحب نے کی۔ ابھی ہمارے پاس ایک اور بڑی ریناؤنڈ پرسنالٹی جنگ کی، اور اس کے بعد پھر میو صاحب آپ کو فیوچر پلاننگ کے حوالے سے بتائیں گے۔ میں چاہوں گا کہ اتنا خوبصورت چہرہ ہمارے پاس موجود ہو اور ہم ان سے، ان کی باتوں سے مستفید نہ ہوں، تو آپ کی بھرپور تالیوں میں ایکس بار پریزیڈنٹ جناب محترم حیدر علی ناگا صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جنگ کی ینگ ترین شخصیت جو کہ پریزیڈنٹ بار جنگ بنے، میں ان سے ملتمس ہوں اسٹیج پر آئیں اور اپنی گفتگو سے ہمیں ملتمس فرمائیں۔ میں سب سے پہلے تو چودھری سعید صاحب، ان کے برادران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جنگ کی عوام کو اس بات کی نوید سناتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پروجیکٹ جو ابھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، انشاءاللہ اس پراپرٹی کے شعبہ میں ایک سنگ میل کی حیثیت ثابت ہوگا۔ لوگ بزنس کرتے ہیں، پراپرٹی کا بزنس ویسے بھی اپنے بوم میں ہے، پاکستان میں بہت زیادہ پراپرٹی کا بزنس ہے، لیکن چودھری سعید صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ تشریف لائے کچہری، اپنے مختلف جو ان کی این او سیز اور اپروولز کے لیے وہ ڈی سی آفیسز اور باقی آفیسز میں جب آتے رہے تو کچہری انہوں نے ہمیں عزت بخشی، ہمارے پاس بھی تشریف لائے۔ جو میں نے ان میں ڈیووشن، انرجی اور ایک کام کرنے کی صلاحیت دیکھی، میں نے بہت کم لوگوں میں وہ دیکھی ہے۔ اپنی جنگ کی عوام، یا میری لائز کمیونٹی میں کھرل صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں، وہ تشریف رکھتے ہیں، نیاز رجانہ صاحب اور عکیرہ صاحب بھی تشریف لائے، اور بھی کافی دوست ہیں جن سے ملاقات ہوئی۔ ہم نے اپنی کمیونٹی کے حوالے سے اس پروجیکٹ کو اپنی نہ صرف کچہری بلکہ اپنے شہر میں بھی سراہا، اور لوگوں کو بتایا کہ یہ صرف سیل پرچیز کی حد تک پروجیکٹ نہیں ہے، یہ جنگ کے لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو جس طرح ریزیڈینشیل پلاٹس کی حد تک انہوں نے اپنا کام یہاں بہت خوبصورت طریقے سے کیا، ان کی سیل پرچیز ہوئی، ابھی کمرشل یہ لانچ کر رہے ہیں، تو ہم لوگ دعا گو بھی ہیں، اور جنگ کا شہری ہونے کے ناطے ہمارے پاس یہاں لاہور سے چودھری صاحب تشریف لائے، تو ہمیں بھی اپنے حصے کا جتنا حصہ ہو سکے وہ ہمیں اس میر کارواں میں ڈالنا ہوگا۔ جنگ کی بہتری کے لیے ہمیں سب کو ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا ہوگا۔ میں آپ تمام لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پروجیکٹ کو کامیاب بنائیں، اور چودھری صاحبان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ تھینک یو جی۔ ناگا صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی، نوازش کرم۔ ناگا صاحب سے مجھے لو ہے جی، بڑے پیارے خوبصورت آدمی ہیں، اور میں اکثر خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں۔ ایک اور بڑا خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، اس سے بھی مجھے لو ہے ماشاءاللہ، وہ شرازی صاحب، ہاتھ ہلا دیں کھڑے ہو کے تاکہ لوگوں کو پتہ چل دے مجھے آپ سے پیار ہے۔ بہت شکریہ جی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی چھوٹی عمر میں اللہ کے فضل و کرم سے آسمانوں پر کمندیں ڈالی ہیں، اور ان امنگوں اور پرندوں کے ساتھ محنت کی ہے، اور بڑے بڑے جو شاہکار تھے ان کو پیچھے بچھاڑا ہے اور کامیابی کو سمیٹا ہے۔ ان کی نظر ایک شہر کہ اب ہمارا یہ قافلہ اس عزم و یقین سے نکلے گا، اب ہمارا یہ قافلہ اس عزم و یقین سے نکلے گا، ہم جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا، اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، خدا نے چاہا تو چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ اسی کے ساتھ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں فیوچر پلاننگ کے حوالے سے، کیا کیا چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے، سپورٹس کے حوالے سے، پی ایم اے کے حوالے سے، اور لالی ووڈ بلاک کے حوالے سے، اور برانڈ ولیج کے حوالے سے، یہ کیا کیا نئی امیونٹیز ہم یہاں پر انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، ویلکم کیجیے گا۔ بڑی کمال شخصیت، 10 سے زائد یونیورسٹیز کے کیمپسز کو بنایا، چلڈرن ہاسپٹل لاہور کو بنایا، الائیڈ ہاسپٹل
हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज देते रहे, किसी यूनिवर्सिटी के मौजूदा ट्रेयर हेड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अल्लाह के फजल करम से ये एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज और बाकी ब्रांड इन्वेस्टर्स के तौर पर या वैल्यू एडर्स के तौर पर जितनी भी चीजें हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा है और लुक आफ्टर कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दरमियान मौजूद हैं, हर वक्त मौजूद होते हैं और एजुकेशन सेक्टर के हवाले से बहुत सारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। यूनिवर्सिटीज के टीचर्स मौजूद हैं, ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इकबाल के दोस्त मौजूद हैं, स्कूल्स के बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं, जंग की डीलर्स कम्युनिटीज मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगा उन सब के लिए जितनी भी गुड न्यूज है वो तारिक इस्माइल बेऊ साहब आकर हमें डिटेल के साथ बताएं और उसके बाद फिर वही जी सावा घाम आया खाना 20 मिनटा बाद लवाम आया। जी तारिक इस्माइल बेऊ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जज साहब। मैं अपने चंद अल्फाज बोलने से पहले एक अजीम शख्सियत को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा जिनकी मोहब्बत दोस्ती 35 साल से मेरे साथ है, भाई के तौर पे हमेशा हक अदा किया। आई विल रिक्वेस्ट टू तुफैल साहब कम ऑन द स्टेज। मेरा सलाम है जी। आज मैं इस जगह पे हूँ प्रोजेक्ट इनकी वजह से। हमारी 32 साल की दोस्ती है। तुफैल साहब उस वक्त 3rd ईयर में थे, मैं 1st ईयर में था। इन्होंने मेरी रहनुमाई की। अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट 6 ईयर आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट ड्यू टू द काइंडनेस एंड रहनुमाई तुफैल साहब की वजह से। जंग के मुतालिक मैंने बहुत कुछ पढ़ा था। ऐसी हस्तियां बैठी हैं जिन्होंने दुनिया में परफॉर्म किया हुआ है। मजमे में CSP अफसर भी बैठे हैं, डॉक्टर भी बैठे हैं, प्रोफेसर भी बैठे हैं, लॉयर भी बैठे हैं, इंटरनेशनल फिगर्स भी बैठी हैं, मुस्तकबिल के मौजूदा हमारे सियासतदान भी बैठे हैं। तो जनाब सही साहब, मेरा कैरियर पाकिस्तान आर्मी के साथ शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मौजूदा आर्मी चीफ के साथ भी मैंने काम किया है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में गया, हमेशा डिफरेंट करने का आदी रहा। तो पहली गवर्नमेंट सेक्टर की MRI मशीन मैंने लगवाई थी पाकिस्तान में। अलाइड हॉस्पिटल में मुझे एक बड़े अजीम मुजफ्फराबाद शिराजी साहब जो जद्दर साहब के दोस्त भी हैं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शफकत बाप की तरह रही और मैं 18 साल की सर्विस में ग्रो करता हुआ ग्रेड 20 तक पहुंच गया। अब हम पिछले कई साल से देख रहे थे कि कुछ करना चाह रहे हैं। आज मुझे 1 महीना यहाँ आए हुए हो गया है। 20 घंटे से हम काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की कामयाबियों के 3 इंडिकेटर्स जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है। जदर साहब, पहले तो इस प्रोजेक्ट की जो बुनियाद है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस मुबारका की बुनियाद है जिसमें आपने फरमाया था कि जब आबादी बढ़ने लगे तो मौजूदा जगहों को तंग करने की बजाय नई जगह आबाद करें, नए शहर आबाद करें। दूसरी बात तो मुझे फख्र है कि ये फैमिली को मैं 2000 से जानता हूँ। ये सारे भाई लाहौर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना के उसमें रहे। आज तक इनके हाथ जो है ना मिट्टी से गंदे नहीं हुए, यानी कहीं पे कोई बदमाश धक्का इनके उस पे नहीं है। जो ये कहते रहे वो करते रहे और करके दिखाते रहे। तीसरी जो बड़ी कामयाबी देख रहा हूँ इस टीम में, हमारे जो ये डीलर्स बैठे हैं तो उनको मैं सलाम करता हूँ उनकी जरूरत को कि आप लोगों के जो जज्बे मैंने देखे हैं, जिस तरह आप सही साहब के साथ कंधा लगा के खड़े, मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ ये उससे भी 11 गुना आपके लिए ज्यादा सोच रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जंग वालों, सही साहब और उनकी फैमिली ने आपको DHA और बहरिया जंग में दे दिया है। आपको DHA और बहरिया जंग में दे दिया है। ये वो ख्वाब था हर इंसान का कि हम बच्चों के लिए, अच्छी तालीम के लिए, सेहत के लिए लाहौर चले जाएं, हम इस्लामाबाद चले जाएं। सर, रिस्पेक्टेबल गेस्ट बैठे, ये प्रोजेक्ट अगले 10 साल में कम से कम 2000 लोगों को इस स्टेप पे सर्विस जॉब देने जा रहा है सर। तो उसके लिए कैसे पॉसिबल होगा, आई वुड लाइक कि मैं उन फैक्टर्स को आपको बता सकूं। 1 जुलाई से इंशाल्लाह मैं रेगुलर यहाँ पे हूँ और 3 साल में अंदर अंदर हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। 1 महीने में मैंने डॉक्टर साहब को पता नहीं कितनी दफा तंग किया, खिदर साहब को, यहाँ के CSP को, पढ़े लिखे। अल्हम्दुलिल्लाह इस 1 महीने में वाइस चांसलर के विजिट हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तान के एक बड़े इदारे खोद फाउंडेशन का पूरा भरपूर इत्मीनान हासिल है। वो प्रोजेक्ट भी हम इनको आज यहाँ पे ले आए। मेरी तरफ से आज ये ऐलान है और जिंदगी रहे मैं इसको अपनी उस्ताद सही साहब के साथ कंधे के साथ कंधा खड़ा हूँ। आप लोगों के बच्चे, आने वाली नस्ल फख्र करेंगी इसमें। सर, सबसे पहले हमने पेंस यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज अमेरिका, मेरे बड़े भाई हैं अतीकुर रहमान मेो साहब, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें सदारती अवार्ड दिया। तो पॉन्से यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज इस वक्त उनके 42 कंट्रीज में लेने गए। हमने अतीक साहब से रिक्वेस्ट की 3 हफ्ते पहले, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अमेरिका से अपनी टीम भेजी। वो फॉरनर आए, उन्होंने अपना एक एनालिसिस किया और 2 दिन पहले उनका LOI अंग्रेजी में कहते हैं लेटर ऑफ इंटरेस्ट आ गया कि वी आर रेडी टू वर्क एट योर साइट फॉर द पॉन्से यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज। अब ये यूनिवर्सिटी
मोअज़्ज़ज़ डॉक्टर मगियाना साहब बैठे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्जन बैठे हैं, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि आप आए, हम ये करने जा रहे हैं। इनको रिकॉर्ड दिया कि आप चेक कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह दे सेटिस्फाइड। हमारा क्योंकि यूनिवर्सिटी का सेटअप डॉक्टरों से राब्ते के बगैर नहीं चलेगा, जज साहब ने शफकत फरमाई तो उनको दफ्तर के लिए यहाँ जगह भी सर दे दी परमानेंट पे, तकरीबन 5 मिलियन की जगह जो उनको डोनेट कर दी है। और इस वक्त पीएम में 4 इस डिस्ट्रिक्ट के किसी डॉक्टर से जाके पूछेंगे तो दे नाउ पाक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है, और ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें मुस्तकबिल की बहरिया और डीएचएसी भी अच्छी क्वालिटीज के साथ आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पौंसे का कैंपस हो गया। हम बिल्कुल वो प्रोडक्ट नहीं कि हम जी एमबीए की डिग्री, एमएससी की डिग्री, एमबीबीएस हम नहीं बांट रहे। हम टेक्निकलिटीज पे गए हैं, हम वो कुछ लेके आ रहे हैं जो अमेरिका और यूरोप की नीड है। बस अमेरिकन नर्सिंग है सर, बैठे हैं अमेरिका, इस वक्त गूगल कर लें 1.6 मिलियन 16 लाख नर्सों की जरूरत है। और जो नर्स जेसीआई लेवल हॉस्पिटल से ट्रेनिंग करके जाती है उसकी सैलरी नॉर्मली $1.5 से $2.25 लाख से शुरू होती है। अब नर्सिंग का मतलब ये नहीं कि उसमें लड़की है सर, इंटरनेशनल नर्सिंग मीन बॉयज का है, 90% उसके लड़के हैं। तो जितना आपके जंग का टैलेंट है, जिनके मेडिकल में और उसमें एडमिशन नहीं होते, तो बहुत से चीप रेट पे इंशाल्लाह हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। और अब मैं 1 जुलाई से परमानेंट छुट्टी मेरी अप्रूव होगी। मैंने इनको नहीं बताया 2 साल का, मैं सुबह शाम यहाँ हूँ जब तक इसको हम पाया तकमील तक ना पहुँचा ले। आजकल क्रिकेट एक प्रोफेशन बन चुका है, बिजनेस बन चुका है। तो मैंने कहा मेरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ प्रमोशन में मेरा नाम अल्हम्दुलिल्लाह है कि जब भी किसी शसाईवाल में रहा तो हमने इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए काम किया। तो दे वेरी काइंडली, तो शाहिद नज़ीर इस पाकिस्तान अंडर 19 के चीफ सेलेक्टर हैं, और दूसरा उनके पास जो होता है पाकिस्तान की तरफ से ब्रायन लारा जो दुनिया का वक्त का सबसे बड़ा बैट्समैन था सर, उन्हें सबसे ज्यादा आउट करने का उनके पास अवार्ड था, उनके पास ये ऑनर था। दे हैव वेरी काइंडली एग्रीड। सही साहब की हमारी मुलाकात हो गई, तो उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एकेडमी बनाने की और उसको इंटरनेशनल लेवल लेके आने की। इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ कि अगले 1 डेकेड में जंग से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी, क्योंकि सही साहब इनकी फैमिली का हुआ है कि जंग से प्यार करते हैं, वो लोग भी यहाँ से निकलेंगे। सही साहब मुझे कहने लगे यार ये तो हीर रांझा का शहर है। मैं कहा जी फिर मेरा ताल्लुक तो मगियाना साहब नाल है, कंधे नहीं, इस पे भी हम काम करते। मैंने कहा यार पाकिस्तान के इतने टीवी चैनल्स आ गए, आजकल हर बंदा ड्रामे पे ड्रामा बना। मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, मेरा फिल्म इंडस्ट्री में भी उतना ही रोल था। आई कॉल टू सैयद नूर, बड़ा प्यार करते हैं, साइमा सारे वो लोग। मैंने कहा शाह जी हीर दे शहर जो बोल रहे हैं तो हीर तानू याद कर रही है। कहना की मतलब है? मैं क्या मैं लाहौर आ रहा हूँ आपको बताऊंगा। सही साहब मेरे साथ थे, हम गए तो सर दे वेरी काइंडली दे एग्रीड विदाउट एनी अनकंडीशनली। कहते तारिक हम आपके जज्बे और आपसे दो दहाइयों का ताल्लुक है, हीर के शहर में हम कोई ऐसी एकेडमी बनाते हैं जहाँ से टीवी के लिए अच्छे लोग जो शाइनर हैं, जिनको पता ही नहीं कि कहाँ कैसे एंट्री होती है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके इसके शहर में और इस टाउन पे आ गई है। वो भी इस टाउन पे कि जिन लोगों का सर टैलेंट है ना, वो दौड़ो माइयों से निकल के इंशाल्लाह उसको भी सर हम शाइनिंग कैपेसिटी में लेके आएंगे। लास्ट जो क्योंकि काफी देर हो गया वेदर की वजह से, आखिरी जो इन्वेस्टमेंट के लिए सही साहब से जो मैंने जबरदस्ती, क्योंकि मैं खुद ऑडिट एंड अकाउंट्स का बंदा हूँ, मुझे बंदे का नाम और डेट पता चल जाता है कि इसकी इनकम क्या है और ये कैसे मौजूदा दौर में गुजारा। वो भी मैंने सही साहब से कुछ पॉलिसियां रिलैक्स करवाई हैं, जिससे हमारे ऑथोराइज्ड डीलर्स, स्पेशली पार्टनर और इन्वेस्टर बड़े कम थे कि यार इसमें कुछ लोगों को ऐसी सहूलत दे कि वो 20% दे के यहाँ घर बनाना शुरू करते। अब घर बनाना सर बड़ी एक साइंस है कि अब 20% उसने हमें दिया है, सही साहब को दिया है, और उसने घर बनाना शुरू कर दिया। अब वो 3 साल में अपना घर मुकम्मल करता है, 4 साल में, यहाँ तो एनुअली प्राइसेस डबल हो। अब 3 साल में अगर वो जाता है तो 2 गुना कीमत भी होता है, तो उसका बेनिफिट 20% देके उसको मिला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बड़ा नीट एंड क्लीन सिलसिला है, और बहुत जल्द यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ घरों की 100 के करीब वो भी शुरू होने वाली है। आपने हमारे लिए दुआ करनी है, क्योंकि हर काम अल्लाह के करम से होता है, उसकी तौफीक से होता है। लेकिन हमने अच्छा सोचा है, हमें मगियाना साहब जैसे, जदड़ साहब जैसे, जावेद साहब पुलिस अफसर बैठे, सारे लोग वकला भी हैं, और इंशाल्लाह हम पे चेक एंड बैलेंस रखें। अब चेक एंड बैलेंस रखें कि बट आज जो हम अनाउंस कर रहे हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जदड़ साहब ने इंटरनेशनल इदारे PIA वहाँ पे इन्होंने सर्व किया है, लेकिन वो शेर है ना कि जरा नम हो तो बट्टी बड़ी जरखेज है साकी, नहीं है इकबाल ना उम्मीद अपनी किश्ते वेरा से। तो ये वो मिट्टी है, हम इसको चमकाने के आए हैं, और इसका फ्रूट, इसका फल फाइनेंशियल टर्म में, रेजिडेंशियल टर्म में, रहायशी सहूलतों में आप और आपके आने वाले बच्चे पाएंगे। मैं आप सबको दिल की ठा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इस फैमिली को मुबारकबाद देता हूँ जिनके साथ ऐसे अजीम लोग यहाँ खड़े हैं। और इंशाल्लाह इसके रेट्स चंद दिनों में बहुत ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि रियलिटी बेस्ड चीजें चलती हैं, सारी चीजें
چیزیں جینوئن ہیں اور انٹرنیشنل چیزیں یہاں آنا شروع ہو گئی ہیں. جن سہولیات کے لوگ آپ لاہور اسلام آباد کنورٹ کرتے تھے, ناؤ انشاءاللہ یو ول اسٹے. آخر میں اللہ سے دعا کو ہوں کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے نبھانے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے ہر اعتماد پہ پورا اترنے کی توفیق دے. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ جی. بھرپور کلیپ کیجئے گا میو صاحب کے لیے. اچھا جی, کچھ اناؤنسمنٹس ہیں آپ دوستوں کے لیے, وہ اناؤنسمنٹس ذرا سن لیجئے توجہ کے ساتھ. ایک تو آپ کو بہت 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 مبارک ہو کہ ہم نے جو ٹارگیٹڈ سیل کرنی تھی ریزیڈینشل کے لیے پہلے 2 بلاک کے لیے, الحمدللہ وہ 80% کمپلیٹ ہو چکی ہے اور 20% پیچھے ہے. اس کے لیے ہم ڈیٹ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں ان ریٹس پہ 15 جولائی مہینے کی 15 تاریخ تک انہی ریٹس پر وہ باقی جو 20% سیل ہے اس میں آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی انویسٹمنٹ ڈبل ہونے جا رہی ہے, ریٹس ڈبل ہونے جا رہے ہیں ود ڈیولپمنٹس اور ود نئی تھنگس. تو برائے مہربانی 15 جولائی تک آپ کے پاس ٹائم ہے, ہری آپ جلدی سے وہ 20% کمپلیٹ کر رہے ہیں. وہ اگلے 10 دن میں ہو جاتا ہے تو کلوز ہو سکتی ہے, لیکن میں نے 15 جولائی کہا ہے, یہ ایک نوٹ فرما لیں. دوسری بات, یہ جو ہم نے کمرشل لانچ کیا ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے ریزیڈینشل کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ریزیڈینشل کے حوالے سے جن دوستوں کی سبمیشن ہو چکی ہے, جن لوگوں نے, وہ بھی الحمدللہ سینکڑوں میں ہے, میں فگرز اناؤنس نہیں کر سکتا, اللہ نظر بد سے بچائے. تو میں ان تمام دوستوں سے جنہوں نے سبمٹ کروا دی ہیں فائلز اپنی اور ریگولر وہ انسٹالمنٹس پے کر رہے ہیں, ان کے لیے گڈ نیوز ہے کہ انشاءاللہ ہم اگست میں, میرا خیال 19 اگست کو 20 سفر ہوگا, تو پہلے تو میں 14 اگست کے لیے ریڈی تھا, لیکن اب 19 اگست یا 20 اگست کو 20 سفر ہوگا. تو یہ 2 ماہ بڑے احترام والے ہیں اور ان کی حرمت کے مطابق میں اگست کے اینڈ میں لاسٹ ویک میں انشاءاللہ تعالیٰ بیلٹ کرنے جا رہا ہوں. اور آپ تمام دوستوں نے جو پلاٹس بک کروائے ہیں ان کے جتنے ڈیوز ہیں اور ان کی جو بیلٹ اماؤنٹ ہے, جو بیلٹنگ کے لیے اماؤنٹ ہم نے دی ہوئی ہے, وہ آپ 14 اگست سے پہلے وہ جمع کروا دیں تاکہ آپ پہلی بیلٹ میں شامل ہو جائیں. اور اسی بیلٹ پہ آپ کو آن گراؤنڈ پلاٹ جو 5 سال میں آپ نے, ہماری کمٹمنٹ تھی کہ آپ نے 5 سال میں اس کے پیسے دینے ہیں, آپ کو ودن 6 منتھ بلکہ ودن 5 منتھس آپ کو ہینڈ اوور کرنے جا. تیسری بات کمرشل کی تھی. کمرشل کے جو ریٹس ہیں وہ میں نے آپ کو گفٹ دیا ہے. 5 مرلے کا کمرشل آپ کے سامنے ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. کچھ دوستوں نے سیل بھی کر دیے ہیں, کچھ دوست ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جناب برائے مہربانی کچھ کمرشل اور ریلیز کریں. لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جب تک ان کمرشلز کو آپ اینڈ یوزر تک نہیں پہنچاتے اور اینڈ یوزر اس میں سے یہاں پر کمرشل بنانا شروع نہیں کر دیتا, اس میں 10 دن لگ جائے, اس میں مہینہ لگ جائے, 2 مہینے لگ جائے, کیونکہ یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ میں فوری بنانا شروع کر دیا جائے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے نئے کمرشل نہیں آئیں گے. آپ ڈنکے کی چوٹ پر اس پر اون کما سکتے ہیں. جھنگ والوں کو گفٹ دیں تاکہ جھنگ والے پر کمرشل 15 20 لاکھ روپیہ کمائیں اور اپنی عید خوشی سے کریں. لاسٹ تھنگ کہ آپ تمام دوستوں کے آنے کا بہت شکریہ. جتنے ہمارے آتھورائز ڈیلرز ہیں وہ جھنگ سے ریلیٹڈ ہیں, سب ڈیلرز ہیں, ان سب کا بہت شکریہ. اتنے شارٹ نوٹس پہ کہ ہم نے صرف 2 دن پہلے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے گیٹ ٹوگیدر کرنی ہے اور تمام دوستوں نے الحمدللہ ہاں میں ہاں ملائی اور شارٹ نوٹس پہ یہاں پر تشریف لائے, ان کا بہت شکریہ. جتنے میرے رفقا سٹیج کی زینت ہیں ان کا بہت شکریہ. ڈاکٹر خضر صاحب کا بہت شکریہ, ایک پرسنالٹی جو مجھے ہمیشہ گائیڈ کرتی ہیں اور ہمیشہ میرے اچھے حوالے سے, فلاح کے حوالے سے بات کرتی ہیں, رانا کاشف صاحب جو کہ الحمدللہ سینڈیکیٹ ممبر ہیں جی سی یونیورسٹی جھنگ کے. میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ وہ گائے بگائے مجھے ماشاءاللہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں. جتنے وکلا برادری سے دوست ہیں ان کا بہت مشکور ہوں. جتنے ڈیلر حضرات ہیں, جتنے انویسٹر حضرات ہیں, سب کے نام تو نہیں لے سکوں گا, لیکن ان سب کا بہت بہت شکریہ. جیوگرافیکلی پاک ریزیڈینشیا سینٹرلائزڈ اور اٹریکٹیو موسٹ لوکیشن پر واقع ہے. 2 موٹر ویز کے سنگم پر, سی پیک روٹ پر, 2 ڈسٹرکٹس کی سینٹرل لوکیشن پر. موٹر وے جھنگ ٹوبا انٹرچینج سے بذریعہ جھنگ ٹوبا روڈ صرف 5 منٹ کی مسافت پر اور جھنگ شہر سے بھی صرف 5 منٹ کی مسافت پر.
डेवलपमेंट और तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। पाक रेजिडेंशिया झंग में प्लॉट की खरीदारी के लिए UAN नंबर पर राब्ता करें 03,0341525। ऑफिशियल वेबसाइट parkresidencia.pk विजिट करें या साइट विजिट करके ऑथराइज्ड डीलर से बराह रास्त खरीदारी करें। एक बहुत बड़ा शहर आबाद होने जा रहा है। पाक रेजिडेंशिया हाउसिंग स्कीम झंग, योर ड्रीम्ड डेस्टिनेशन। जून 2023। पाक रेजिडेंशिया हाउसिंग स्कीम झंग वक्त से पहले डिलीवर करने के अपने वादे पर रवां दवा। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मेन एंट्रेंस के बाद पाकिस्तान की तारीख के पहले बोथ साइड ओपन कमर्शियल प्लॉट्स का ऐलान कर दिया गया है। प्रोजेक्ट CEO मोहम्मद सईद चद्दड़, डायरेक्टर लैंड मसूद अहमद चद्दड़, डायरेक्टर एडमिन एंड सेल्स महमूद अहमद चद्दड़ और डायरेक्टर ऑपरेशंस मोहम्मद खालिद चद्दड़ ने इस यादगार तकरीब की मेजबानी की, जिसमें झंग और मुल्हिका शहरों के नामवर कारोबारी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बोथ साइड ओपन कमर्शियल प्रॉपर्टी यूरोपियन स्टैंडर्ड कमर्शियल हब की ये सोच 28 जुलाई 2022 को पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर प्री लॉन्चिंग सेरेमनी ऑफ पाक रेजिडेंशिया में CEO प्रोजेक्ट मोहम्मद सईद चद्दड़ ने दुनिया भर के सामने पेश की। जब वहां सिर्फ मैदान था लेकिन सोच और इरादे बुलंद थे। आज 1 साल बाद जहां इकोनॉमिक रेवोल्यूशन बोथ साइड ओपन कमर्शियल प्लॉट्स का ऐलान किया गया, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेन एंट्रेंस एक नए शहर में आपका वेलकम कर रही है। जदीद रोड लाइट्स का वसी नेटवर्क झंग टोबा रोड की जीनत बन गया है। 210 फीट मेन बुलेवार्ड और मैप कटिंग आपके भरोसे और एतमाद की नवीद है। और साल 2023 में ही बैलेटिंग भी इंशाअल्लाह तेज तरीन डेवलपमेंट का भी एक नया स्टैंडर्ड बन रहा है। बोथ साइड ओपन कमर्शियल प्लॉट की इस यादगार तकरीब में शरीक हम अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, बिलखसूस नामवर कारोबारी व समाजी शख्सियत जनाब चौधरी गुलशेर अहमद चद्दड़ साहब, एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट झंग बार जनाब हैदर अली नांगा साहब, चेयरमैन कैडेट कॉलेज झंग कमांडेंट सुहेब फारूक साहब, SP मोटरवे जनाब चौधरी जावेद अहमद चद्दड़ साहब, डॉक्टर सर्जन शायर राइटर और अदीब जनाब मोहसिन मघियाना साहब, फाइनेंस हेड GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जनाब तारिक इस्माइल म्यू साहब और तमाम ऑथराइज्ड डीलर्स की भरपूर शिरकत का बेहद शुक्रिया। हमने अपने मेहमानों को पाक रेजिडेंशिया हाउसिंग स्कीम झंग सोसाइटी का कंप्लीट टूर भी करवाया। उम्मीद करते हैं रियल टाइम टूर का ये तजुर्बा भी बेहतरीन रहा होगा। पाक रेजिडेंशिया की एक बिग न्यूज़ है, जो कमर्शियल है ये मेन बुलेवार्ड के ऊपर है, 210 फुट का रोड है और इसकी जो पार्किंग बैक और फ्रंट ये ओपन है, 72 फुट की इसकी हाइट है। कमर्शियल जो है हमारा शॉर्ट हो जाएगा, जितने के लिमिट में आ रहे हैं जो लोग पहले लेंगे वो सबसे ज़्यादा कामयाब रहेंगे। इसका तमाम जो सिस्टम है वो अंडरग्राउंड है, सीवरेज का बेहतर निज़ाम है और आने वाला वक्त इसका जो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि लाइक आपको यहाँ पे बैरिया टाउन नज़र आएगा। ये आज जी मैं और मेरे डीलर दोस्त भाई हैं बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। उसकी वजह यह है कि हम एक अरसे से दरख्वास्त कर रहे थे मालकान पाक रेजिडेंशिया से हमें कमर्शियल की डील दी जाए। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, हम शुक्रगुजार हैं उनके। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह 2 से 3 दिन तक आपको इंशाल्लाह हम कमर्शियल की डील देते हैं, क्योंकि ये कमर्शियल इतने ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है और ये पहली डील है। ये मैं समझता हूँ कि बड़ा ही कोई खुश नसीब होगा कि जो इस डील में जाएगा और ये कमर्शियल लेगा, और जो नहीं लेगा तो वो कल तक पछताएगा। उसकी वजह ये है लोग बैरिया को जानते हैं, ये DH को जानते हैं, उस लेवल की ये सोसाइटी है। आप देखें कि इसका जो मेन बुलेवार्ड है 210 फुट का है ये, और फिर ये जो हमें कमर्शियल दिया जा रहा है
اس کا فرنٹ بیک جو ہے یہ اوپن ہے. لگتا یہ 5 مرلے کا کمرشل ہے جو ہمیں ڈیل مل رہی ہے, لیکن اگر اس کے ایریا کو ہم دیکھیں گے تو یہ 15 مرلے جگہ بن جاتی ہے. پاک ریزیڈینشیا کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی یہاں پہ ہے, اس کی جو ریزیڈینشیل اسکیم کی بھرپور کامیابی کے بعد ہم نے مینجمنٹ سے یہ بات کی ہے کہ ہمیں کمرشل کی بھی ڈیل دی جائے. اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہمارے بھرپور کوشش کے بعد وہ ایگری ہو گئے, ہمیں کمرشل کی ڈیل دے رہے ہیں. یہ دونوں سائڈ سے اوپن ہے, پارکنگ کے لیے آج سے بھی دونوں سائڈ پہ 210 فٹ کا یہ مین بولیوارڈ ہے. یہ جنگ کے جو عوام ہے جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے, جنہوں نے ریزیڈینشیل میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے, تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو کمرشل وہ لیں تاکہ انہیں بینیفٹ آنے والے وقت میں ملے. پاک ریزیڈینشیا جھنگ میں یہاں پہ ہم نے جب سٹارٹنگ کی ہے نا, تو ریزیڈینشیل جو پلاٹس تھے نا وہ ہم نے سیل کیے ہیں. زیادہ لوگوں کی ہمارے پاس بہت ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ ہمیں کمرشل چاہیے ہمیں, تو الحمدللہ مینجمنٹ نے ہماری ریکویسٹ جو ہے وہ قبول کی ہے, اور انہوں نے کہا جی ود ان 1 or 2 days ہم آپ کو کمرشل کی ڈیل دے رہے ہیں. جو اسپیشل چیز ہے اس کمرشل میں وہ یہ ہے کہ جو ہمارا مین بولیوارڈ ہے 210 فٹ کا, اس کے اوپر یہ 5 مرلے کے کمرشل ہیں, بہت سائڈ اوپن ہے, مطلب اس کا فرنٹ بھی اوپن ہے, اس کا بیک سائڈ بھی اوپن ہے. بیک سائڈ کے اوپر کمرشل ہوتا ہے عام سوسائٹیز میں نا, مطلب آگے کمرشل ہے, پیچھے اس کے پھر کمرشل ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے یہ ایک ہی کمرشل ہے, اس کا بیک بھی اوپن ہوگا اور فرنٹ بھی اوپن ہوگا. 210 فٹ مین بولیوارڈ ہوگا, واکنگ ٹریکس ہوں گے ایٹسٹرا. وہ انشاءاللہ یہ بہت اچھی انویسٹمنٹ بھی ہوگی, اور یہاں پہ ان فیوچر انشاءاللہ نیا جھنگ شہر یہاں پہ آباد ہوگا. پاک ریزیڈینشیا جھنگ میں کمرشل کی اوپننگ ہو رہی ہے. جھنگ کے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. دیکھیں جی ایک نیا شہر آباد ہو رہا ہے یہاں پہ جو کمرشل دے رہے ہیں وہ 5 مرلہ کمرشل ہے اور 210 فٹ کے اوپر ہے, 40 فٹ اس کے بیک پہ بھی روڈ ہے اور 2 سائڈ اوپن ہے. فیصل آباد, جھنگ, ٹوبہ شہر, یہاں پہ جتنے بھی سراؤنڈنگ میں شہر ہیں وہاں پہ کوئی ایسی کمرشل کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. جو یہاں پہ پاک ریزیڈینشیا لوگوں کو ایک بینچ مارک دے رہا ہے. کسی بھی سوسائٹی کا سب سے پہلے اتنا مین بولیوارڈ بڑی نہیں ہے 210 فٹ کی, انٹرنیشنل سٹائل میں اس کو ڈیولپ کیا جائے. لاسٹ 6 منتھ پہلے اس کو لانچ کیا تھا, تو ریزیڈینشیل کی کامیابی کے بعد لوگوں کی بھرپور فرمائش پہ کمرشل کے بارے میں کہہ رہے تھے ہم کمپنی کو کہ بار بار کہ ہمیں کمرشل کی ڈیل دی جائے, کیونکہ لوگوں کی بڑی فرمائش ہے کہ ان کی ڈیمانڈز ہے مارکیٹ میں کمرشل جو ہے ہمیں دیا جائے. اور یہاں پہ کمرشل جو ہے وہ دیکھا جائے تو 210 فٹ کا مین بولیوارڈ پہ کمرشل ہے جو کہ دونوں سائڈ سے اوپن ہے. اس کی آگے 40 فٹ کی جو ہے پارکنگ بھی ہے, لوگوں کے لیے اچھا ہے. 2-3 دن میں لانچ کر دی جائے گی پرائس. انویسٹرز کے لیے اچھا موقع ہے کہ وہ یہاں پہ انویسٹ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. شائن بات ہے, ہم کافی دیر سے ریزیڈینشیل پلاٹ سیل کر رہے تھے, لیکن ہر بندے کا نا ایک تجسس تھا, لوگ آ رہے تھے کبھی کمرشل بھی دیں, کمرشل بھی دیں, کمرشل بھی دیں. کسی طرح سے کمپنی کو ہم نے قائل کر ہی لیا ہے کہ آپ ہمیں کمرشل دے دیں. لمیٹڈ اماؤنٹ میں کمپنی ایگری ہوئی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ کمرشل دینے کے لیے ایگری ہو گئے ہیں. جنگ کے لوگوں کے لیے obviously ایک بہت اپرچونٹی ہے, کیونکہ یہاں پہ نا یہ کمرشل آئے گا ہمارے پاس گراؤنڈ پلس 5 سٹوریز ہوگا, جو کہ ایک قسم کے نا پلازے ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نا فرنٹ اور بیک اوپن دے رہے ہیں, تو لوگ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں. فرنٹ بیک کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو کمرشل سپیس ہے نا وہ ویسٹ نہیں ہو رہی, کیونکہ اگر آپ کا فرنٹ ہوتا ہے نا, آپ کے پاس بیک نہیں ہوتی, تو آپ کو فرنٹ پہ آپ کو لفٹ کے لیے, آپ کو سیڑھیوں کے لیے جگہ چھوڑنی پڑتی ہے. یہ آپ کی بہت زیادہ ویسٹیج, تقریباً آپ کی 30% جو فرنٹ ویسٹیج ہو جاتی ہے نا بیک اوپن ہونے کی وجہ سے, وہ آپ کے پاس ویسٹیج ضائع نہیں ہوگی. دوسری بات یہ کہ 210 فٹ کا ہمارے پاس مین بولیوارڈ ہے, پلس ہم 40 فٹ کی کہتے ہیں پارکنگ دے رہے ہیں ایچ کمرشل کو, اور اس کے بیک پہ بھی ہمارے پاس 40 فٹ کی روڈ ہے, یعنی کہ اس پہ بھی آپ کو ایک گرین بیلٹ بھی ملے گا, وہاں پہ آپ کو پارکنگ کی ایکسٹرا جگہ بھی مل جائے گی. تو اس لیے یہ ایک بہت ہی آئیڈیل قسم کا سینیریو کریٹ کر دیا. ہم آج اتنے ڈیلائٹڈ ہیں, ہمارے کلائنٹس تھے ریزیڈینشیل کے, ان کی بھی فرمائش تھی کہ کمرشل کب لانچ ہو رہا ہے. آج الحمدللہ انہوں نے ہماری جو ریکویسٹ ہے وہ ایکسیپٹ کی ہے. انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ 1-2 دنوں میں یہ ہم جو کمرشل ہے اس کو لانچ کر رہے ہیں. یہ جو ہمارا کمرشل ہے 210 فٹ کی مین سڑک ہے, یہ اس کے اوپر ہے, فرنٹ اور بیک دونوں سائڈ اوپن ہے. تو یہ دیکھنے میں تو صرف 5 مرلے, لیکن اوریجنلی یہ جو نا یہ تقریباً 15 مرلے بنتا ہے. عبدالصمد معاذ آپ سے مخاطب ہوں. A1 پراپرٹی مارکیٹنگ جھنگ سے میرا تعلق ہے. پاک ریزیڈینشیا کے حوالے سے جھنگ میں, جھنگ کے نواب میں یہ ہمیں پہلی سوسائٹی مل رہی ہے جو اپنی خوبیوں کی بنیاد پہ باقی تمام سوسائٹیز سے تھوڑا ڈیفرینشیٹ ہے, اور بلکہ میں تو کہنا چاہوں گا کہ اس کے اپنے ڈسکریمنیشنز ہیں, اور وہ پازیٹیو ڈسکریمنیشنز میں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ٹوبہ روڈ جھنگ میں اور بھی کئی کالونی آپ کو دیکھنے میں ملیں گی. موٹر وے سے اترتے ہی آپ کو دائیں بائیں میں کچھ سوسائٹیز ہیں, لیکن اگر ہم ان کے موازنے میں بات کرنا چاہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں صرف پاک ریزیڈینشیا میں مل رہی ہیں. انہی کی بنیاد پہ ہم چاہیں گے کہ اپنے کلائنٹ سے پاک ریزیڈینشیا کو وزٹ کرنے اور یہاں انویسٹمنٹ کرنے, اپنا انسٹالمنٹ
डेवलपमेंट प्लान पूरा होने पे यहाँ रेजिडेंट्स के लिए भी उन्हें बेहतरीन माहौल मुयस्सर आए। पाक रेजिडेंशिया इस वक्त वाहिद स्कीम हमें मिल रही है जो प्रॉपर प्लाट दे रही है, फाइल नहीं दे रही है। ये वाहिद सोसाइटी है जो 200 एकड़ पे स्टार्ट की गई और 200 एकड़ में जितनी प्लॉटिंग हो चुकी है और जितनी इसकी गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल चुकी है, बाकी लोग अभी बहुत पीछे होंगे, लेकिन पाक रेजिडेंशिया इन सब में आगे है। फिर आप अगर इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, प्लानिंग देखें, डेवलपमेंट देखें, तो उसके लिए हम आपको दावत देते हैं कि एक मरतबा ज़रूर पाक रेजिडेंशिया तशरीफ़ लाइए। यहाँ आपको पाकिस्तान भर में रिकॉर्ड चैलेंज के तौर पे हम कहा करते हैं कि पाक रेजिडेंशिया की जो एंट्रेंस है वो 500 फुट से ज़्यादा का डिज़ाइन है। ये सबसे बड़ी गेट एंट्री होगी। फिर इसमें 210 फीट की मेन बुलेवार्ड है और उसके ऊपर कमर्शियल्स होंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पाक रेजिडेंशिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का हॉस्पिटल अवेलेबल मिलेगा। 24 घंटे यहाँ के रहने वालों के लिए वो सर्विसेज फराहम करेगा। स्कूल्स इंटरनेशनल ब्रांड के वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें दूसरी सोसाइटी से पाक रेजिडेंशिया झंग को डिफरेंशिएट करती हैं और हम इन्हीं की बुनियाद पे अपने दोस्तों को पाक रेजिडेंशिया विजिट करने, यहाँ पे प्लॉट खरीदने, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की दावत देते हैं। मेरा नाम अदील शहरियार है। मेरा ताल्लुक अल अजीज स्टेट एंड बिल्डर्स के साथ है। हम यहाँ पे पाक रेजिडेंशिया के ऑथराइज्ड डीलर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जो चंद माह में हमारा एक्सपीरियंस पाक रेजिडेंशिया में बहुत अच्छा रहा है। लोगों का रुझान और यहाँ पे परचेजिंग बड़ी अच्छी जा रही है और डेवलपमेंट भी ज़बरदस्त चल रही है। अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरी सोसाइटी के साथ, जिस तरह झंग और टोबा की फर्दर सोसाइटी, पाक रेजिडेंशिया वो आपको एक नया लाइफस्टाइल दे रहा है। जो इसकी मेन एंट्रेंस है वो 500 फुट की है, मेन बुलेवार्ड रोड इसके 210 का है और इसकी मिनिमम स्ट्रीट्स जो हैं वो 35 फीट की हैं। फिर इसमें हॉस्पिटल है, हॉर्स राइडिंग क्लब है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, पार्क, स्कूल्स, कॉलेज। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम बहुत पुरुम्मीद हैं और बहुत ही खुश हैं कि हमने अच्छे टाइम पे फैसला किया कि हमने पाक रेजिडेंशिया के साथ कनेक्ट हो गए और इसके ऑथराइज्ड। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद चौधरी है। मैं MZ मार्केटिंग को प्रेजेंट कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कस्टमर का बहुत अच्छा फ्लो है। जो दोस्त आ रहे हैं वो जब विजिट करते हैं सोसाइटी को तो फाइल ज़रूर परचेज करते हैं। हम प्लॉट की फाइल दे रहे हैं। हम 6 माह में बेल्ट कर रहे हैं और 1 साल में डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ पे हम दे रहे हैं 210 फीट का मेन बुलेवार्ड और 40 फीट के मिनिमम रोड्स हैं। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, टोबा, फैसलाबाद, झंग, यहाँ पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि इंस्टॉलमेंट का प्लान है वो बहुत ईजी है। 3 मरला प्लॉट की 6,000 रुपये महाना एक साथ है, 1,50,000 रुपये इसकी बुकिंग। मेरा नाम सईद बाजवा है और यहाँ पे मैं अल रहमान स्टेट एंड बिल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाक रेजिडेंशिया झंग में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है हमें। यहाँ पे लोग यहाँ पे हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं। डे बाई डे हमारी सेल्स भी हो रही हैं, सेल्स क्लोजिंग की तरफ जा रही हैं। हम लोग जो ऑफर कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो मिडिल क्लास फैमिली है ना उसको बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारा 3 मरले का प्लॉट है ना, उसकी सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपया बुकिंग है और 6,000 रुपया हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट है, जो कि इजीली आप उसको कन्वर्ट करें पर डे पे तो 200 रुपया पर डे इसका बनता है। साथ में ये भी ऑफर कर रहे हैं कि 6 माह में इसकी बेल्टिंग करके उसके ऊपर आप घर बनाना चाहे तो घर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। मैं अल करीम स्टेट एंड बिल्डर्स का CEO हूँ। हम पाक रेजिडेंशिया के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमें क्लाइंट रिस्पॉन्स है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। जो भी लोग आते हैं यहाँ पे विजिट करते हैं तो एक दफ़ा वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना हम जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरह की अम्यूनिटीज़ हम लेके आए हैं, और जैसे वो आके जब देखते हैं कि यार अंडरग्राउंड बिजली है, 210 फीट का मेन बुलेवार्ड है, तो उनका सबसे मेन क्वेश्चन होता है भाईजान क्या ये चीज़ें वाकई होंगी कि आप सिर्फ कागज़ पे दिखा रहे हैं। तो जब हम उनको पीछे लेके जाते हैं, उनको विजिट करवाते हैं, तो वाकई वो शॉक्ड रह जाते हैं कि यार वाकई आप जो बात कर रहे हैं ये ट्रू पिक्चर्स में हमें नज़र भी आ रही है। अभी हमने रिसेंटली वहाँ पे जो रोड वर्क स्टार्ट किया है, जो मड मार्किंग की है स्ट्रीट्स की, तो इसलिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हम क्लाइंट जैसे आज आया है, जब वो 2 हफ्ते के बाद आता है और यहाँ पे एक इंटायरली डिफरेंट स्ट्रक्चर बने हुए देखता है, तो वो वाकई कहता है कि नहीं यार यहाँ पे इतनी स्पीड से काम हो रहा है, तो ऐसा आपको किसी और सोसाइटी में नज़र नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद इकबाल है। सिग्मा मार्केटिंग पाक रेजिडेंशिया झंग की तारीख का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, 1500 कनाल पे मुश्तमिल है। इसका जो एंट्री गेट है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एंट्री गेट है। यहाँ पे जो इंशाल्लाह जो चीज़ें मैसर करने जा रहे हैं वो झंग में पहले अवेलेबल नहीं है। पाक रेजिडेंशिया झंग में डेवलपमेंट जारी और सारी है। काफ़ी दोस्त अब आप विजिट कर रहे हैं। झंग के, टोबा, टेक्सिंग के, गोजरा के और सराउंडिंग के जितने भी इन्वेस्टर हजरात हैं, सबके लिए एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट, तमाम तर सहूलियात से मैसर। इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा इसमें से अर्निंग और प्रॉफिट आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब हनीफ है। मैं JJ ग्रुप को प्रेजेंट कर रहा हूँ। JJ ग्रुप एक ऑथोराइज्ड डीलर है पाक रेजिडेंशिया
है जंग का। माशाल्लाह इधर बहुत अच्छा रिस्पांस है जंग के लोगों का। जो भी कस्टमर आ रहा है वो बहुत खुश है कि जंग में पहली दफ़ा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत खुशादा रोड है, गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी मिलेगी 24 आवर। इतनी बड़ी अप्रूवल आज तक ना फैसलाबाद में भी नहीं हुई। डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो रही है, आसपास रेट्स भी ज्यादा हैं और इधर रेट बहुत कम है। एक आम बंदा प्लॉट ले सकता है, वो भी 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे। 3 मरला है, उसकी 6000 इंस्टॉलमेंट है, अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम माहिर आमिर रज़ा है। मेरा ताल्लुक बिस्मिल्लाह रियल एस्टेट से है और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक रेजिडेंशिया हाउसिंग सोसाइटी के ऑथराइज्ड डीलर हैं। पाक रेजिडेंशिया हाउसिंग सोसाइटी जहां की सबसे बड़ी सोसाइटी है, जिसका मेन इंटरेस्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह 500 फीट है और इसका जो मेन बुलेवार्ड है, इसकी मेन सड़क है वो 210 फीट की है। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, कुशादा सड़कें हैं, प्लांटेशन का काम भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। हॉर्स राइडिंग क्लब, कम्युनिटी सेंटर्स भी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी सबसे बेहतरीन सोसाइटी है, आम आदमी की पहुंच में भी है, क्योंकि इसकी जो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट है वो 1750 रुपए फी मरला माहाना किस्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अकबर नवाज नासिर है। बदर स्टेट एजेंसी के नाम से मेरा ऑफिस रजिस्टर्ड है। अरसा 12 साल से ये प्रॉपर्टी से मुतलका काम कर रहा हूँ। मेरा ऑफिस जो है ये टोबा फाटक के करीब है, टोबा रोड पे है। इसके मुल्हिका जो आबादी है महल्ला राव कॉलोनी है और एक अब्बासपुरा है। कोई भी बिजनेस होता है उसके लिए आपके अंदर एतमाद का होना बहुत ज़रूरी होता है और एतमाद के लिए आपके पास अच्छा और ख़राब माल होना ज़रूरी है। तो यहाँ तो बहुत सारी सोसाइटी हैं जिनकी तरफ से ऑफर्स भी हैं, लेकिन मैंने पाक रेजिडेंशिया को इसलिए प्रेफर किया है, एक तो इनके कॉल और फेल में तजाद नहीं है। जो बात करते हैं वो हमें ग्राउंड पे मिलती है, वो चीज़ लोगों को बताने में यकीन होता है कि हम जो बात कर रहे हैं इंशाल्लाह हमें वहाँ से ये चीज़ मिलेगी। हमारा एक ख्वाब था बैरियर टाउन, DHA, हम ये सुनते थे हमारी ये जंग की जो अवामुन्नास है वहाँ प्लाट खरीदेगी, एक मकान बनाएगी। हमारा ख्वाब जो है वो मुकम्मल होता हमें नजर आ रहा है। एक तनख्वाहदार तबका जो है वो 6000 पर मंथ दे के आसानी से जो है अपना प्लाट खरीद के मकान बना सकता है। जो इन्होंने हमसे वादा किया कि मेन जो रोड पे हम एंट्रेंस देंगे वो 500 फुट की होगी, शायद इनके इल्म में ना हो, लेकिन हमने वो चेक की है, वो जो इन्होंने कहा था वैसे ही है। पाक रेजिडेंशिया पाकिस्तान में तारीख का सबसे बड़ा मेन एंट्रेंस दे रहा है। इसका जो मेन बुलेवार्ड है वो 210 फुट का है और इसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो 24/7 आवर्स है। अंडरग्राउंड इसकी इलेक्ट्रिसिटी है, कुशादा सड़कें हैं, यहाँ कम्युनिटी सेंटर है, बैनुल अक़वामी मेयार का हॉस्पिटल है, हॉर्स राइडिंग क्लब यहाँ पे बनाया जाएगा, जामिया मस्जिद और पार्क होगी। तो ये बहुत सारी खसूसियात हैं जो यहाँ पहले किसी सोसाइटी में नहीं पाई जाती। इस वजह से भी इसके अंदर ज्यादा अट्रैक्शन है कि लोग ऐसा चाहते थे, जो कि आज उनके सामने बनता हुआ उनको नजर आ रहा है। इन्वेस्ट करने का एक प्राइम टाइम होता है। जो आज प्लाट खरीद लेगा वो यकीनन बहुत खुश नसीब लोगों में से होगा। एक अच्छी सोसाइटी है। मैं ये एडवाइस करता हूँ अपनी जंग की आवाम को, यहाँ प्लाट खरीदने में ताखीर ना करें। इसके रेट्स जो है वो बहुत ऊपर चले जाएंगे और वो फिर पछताएंगे। आज एक प्लाट खरीद रहे हैं तो हम पहले खरीदते तो हमें 2-3 प्लाट मिल जाते हैं सरकार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शुएब असलम। हमारा ऑफिस टोबा रोड जंग में है। हम अल अजीज स्टेट एंड बिल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमने विजिट किया है पाक रेजिडेंशिया और माशाल्लाह ऐसा प्रोजेक्ट पूरे जंग में नहीं है। हम विजिट कर चुके हैं, माशाल्लाह बहुत कुशादा है। एंट्री 500 फीट है, मेन सड़क इनकी 210 फीट है और माशाल्लाह कुशादा सड़कें हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है। एक आम आदमी इसे अफोर्ड कर सकता है सिर्फ 6500 रुपए माहाना किस्त के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम संशाह पाक रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी की साइट से और MZ रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एज एन सेल एग्जेक्टिव काम कर रहा हूँ। जो एज एन सेल एग्जेक्टिव का मेरा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि मैं इस वक्त पाक रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी जंग, जो कि फैसलाबाद की तारीख की सबसे बड़ी सोसाइटी, यहाँ पे जंग टोबा रोड पे मुज़ाबाग से आगे तकरीबन 3 किलोमीटर मुसाफत पे ये लॉन्च हुई है। यहाँ पे 510 फीट की जो मेन एंट्रेंस है, मेन गेट है, वो ऑफर कर रहे हैं। सेकेंडली हम जो मेन बुलेवार्ड दे रहे हैं वो 210 फुट की दे रहे हैं। 200 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे अप्रूव करवाया है। कॉलेजेस हैं, बड़े से बड़े हम पार्क्स दे रहे हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, सीवरेज सिस्टम है वो हमने DHA और बैरी के तर्ज पे इंस्टॉल करवाया है। कस्टमर्स के फीडबैक है वो बहुत अच्छा आ रहा है। जंग के लोगों का फीडबैक, मुज़ाफ़ात के इलाके जो है टोबा रजाना, यहाँ के लोगों का फीडबैक इंटरेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। ये एक नया जंग, नया सिटी जो है यहाँ पे लॉन्च होने जा रहा है। यहाँ लोगों को एक नया लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करने जा रहा है और ये इंशाल्लाह साबित होगा।
ہم نے جو سروے کیا ہے وہاں پہ کسی بھی سوسائٹی میں یہ ریٹس نہیں ہے. میں آتھورائز ڈیلر ہوں پاک ریزیڈینشیا جھنگ کا اور مجھے اس بات پہ فخر ہے. سوسائٹی بہت اچھی سی پیک روٹ پہ آ رہی ہے. یہ جھنگ والوں کا فیوچر ہے. ہم وہاں پہ ایک لائف سٹائل بلڈ کرنے جا رہے ہیں جن کا صرف ایک مشن ہے لوگوں کو ڈیلیور کرنا. ایسی سوسائٹی پورے جھنگ میں نہیں ہے جس کی مین بولیوارڈ 210 فٹ منیمم 40 فٹ کے روڈ ہے اور انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی ہے. جنگ میں آج تک کسی نے میڈیکل کالج نہیں ڈلیور کیا. انشاءاللہ تعالیٰ پاک ریزیڈینشیا وہ بھی وہاں پہ ڈلیور کرے گی. ان کی سوچ بہت بڑی ہے, انشاءاللہ کامیابی ہوگی. انہوں نے اتنی دانش مندی اور عقل مندی سے وہ جگہ سلیکٹ کی ہے جن اصولوں پہ حکومت کو سوچنا چاہیے. انہوں نے چودھری سعید صاحب کو ایسی سوچ اللہ نے دی ہے. صدر قوم کی حیثیت سے میں فخر محسوس کر رہا ہوں. آپ ایک محنتی, پرعزم اور ہمیشہ پر امید رہنے والے شخص ہیں. ان کی سوچ ہمیشہ بہت بڑی رہی. جس کام کے بارے میں ٹھان لی پایا تکمیل تک پہنچایا. سب سے بڑا بلیف آپ کو ہونا چاہیے اللہ رب العزت پہ. اندر کے خوف ختم ہو جاتے ہیں. میاں مشتاق احمد صاحب ہیں, ان کی دعاؤں سے اور ان کی رہنمائی سے ایک پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہا ہوں. خود 35 40 50 سال کے لیے الحمدللہ وہ گلیاں, وہ سڑکیں, وہ ماحول تنگ تو نہیں لگے گا. اس ویژن کے ساتھ ہم نے اس کا میپ ریڈی کیا. آپ کا ہر کمرشل فرنٹ اور بیک اوپن ہے. ایک ہم اکنامک زون ڈیزائن کریں گے, آپ کو سکول سسٹم ملے گا. آنے والی نسل کے لیے ایک بہترین بنیاد ہوگا. اخلاص والے, پیار والے, محبت والے, صاف گو. میں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں اور ساتھ رہوں گا. پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں عام عوام کو ذہن میں رکھ کے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا گیا ہے. تقریر کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے. تسکین پہنچانے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب روحان صاحب سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام معزز مہمانوں کو پاک ریزیڈینشیا ہاؤسنگ اسکیم جھنگ, دا بگیسٹ پروجیکٹ آف جنگ کی میموریبل پری لانچنگ سیریمنی میں خوش آمدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے, رب العالمین کے لیے, تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم, نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے, فیصلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھی راہ دکھا, صراط مستقیم پہ. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کی راستہ دکھا ہمیں. ہمارا شعور اتنا وسیع کر دے کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ نظر آنے لگے جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہے, جس راستے پہ چل کے اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کے راستے پہ نہیں جو گمراہ ہو گئے, جو برباد ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں رہنمائی کرے کہ ہم اپنے آخری وقت تک اس انعام کیے ہوئے راستے پر ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ روحان بھائی. اب میں نعت کے چند اشعار پڑھنے کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں. ہمارے جو ڈائریکٹر لینڈ ہیں چودھری مسعود احمد چدر صاحب کے صاحبزادے جناب فیصل چدر صاحب سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور نعت کے چند اشعار پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو
लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया फैसल भाई। जी, मेरा नाम मोहम्मद अजमल है और मेरा जो ताल्लुक़ है वो बुरहान रियल एस्टेट से है और पाक रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी झंग में जो है वो मैं ऑथोराइज डीलर हूँ। वहाँ पे जो हमें फैसिलिटेट किया गया है बहुत ही अच्छी तरह किया गया है। यहाँ पे जो हमें सईद साहब ने जो ब्रीफिंग दी है बहुत ही अच्छी है और वहाँ की आवाम के लिए जो है ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है और जो रेट्स है वो बहुत ही रीज़नेबल है। वहाँ पे हमने जो सर्वे किया है वहाँ पे किसी भी सोसाइटी में ये रेट्स नहीं है। आज की जो मीटिंग है ऑलमोस्ट जो हम लोग काफ़ी सोसाइटीज़ में काम कर रहे हैं, इस तरह की जो मीटिंग्स है ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी है कि पुरसकून माहौल में और इस तरह का जो हमें सेटअप दिया गया है और डिनर भी बहुत अच्छा था। हमें बाहर जाकर डिनर हमने किया, उसके बाद बड़े पुरसकून और खुशगवार माहौल में हमने यहाँ पे उनसे ब्रीफिंग ली है जो कि बहुत एंजॉय फील थी और मज़ेदार किस्म की मतलब सारी ब्रीफिंग थी। जी, मेरा नाम जाहिद मुश्ताक है। अल तकवा रियल एस्टेट से मेरा ताल्लुक़ है और मैं ऑथराइज डीलर हूँ पाक रेजिडेंशिया झंग का और मुझे इस बात पे फ़ख्र है। जी, आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बहुत अच्छा एक सेशन था जो हमने पहले कभी नहीं देखा है। राजा मोहम्मद अमजद इकबाल मेरा नाम है और मैं प्राइम एस्टेट एंड बिल्डर में एज ए CEO काम कर रहा हूँ और बैरिया टाउन में पिछले 11 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने इनके साथ ज्वाइन किया है। बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और जंग के हवाले से बहुत अच्छा हमारा ये प्रोजेक्ट आएगा। आज के दिन मीटिंग और खाना दोनों बहुत एक्सीलेंट रहे। सोसाइटी बहुत अच्छी सी पैक रूट पे आ रही है और सबसे बड़ी बात है ये कि 250 का मरला आ रहा है और रोड स्ट्रक्चर जो इसका होगा वाइड होंगे। इसका जो गेट है वो 500 फुट का है। आज तक मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा गेट के साथ कोई भी सोसाइटी आई हो। मेरा नाम सईद बाजवा है। मेरा ताल्लुक़ अल रहमान एस्टेट एंड बिल्डर्स के साथ है। पाक रेजिडेंशिया में मैं ऑथराइज्ड डीलर्स हूँ। आज तक 500 फुट जो मेन एंट्रेंस वो अभी तक कहीं भी नहीं है और उसके बाद 210 फुट वाइड रोड है। मिनिमम रोड जो है वो 35, 40, 50, 60 इस तरह के रोड्स हैं। इंशाल्लाह ये बहुत बेहतरीन सोसाइटी होगी। ये आप समझे कि ये झंग वालों का फ्यूचर है। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। मैं अल करीम एस्टेट एंड बिल्डर्स का CEO हूँ। पाक रेजिडेंशिया का मैं ऑथराइज डीलर हूँ। तो हमारा जो एग्रेशन है ना डेवलपमेंट की तरफ, हम जंग में जाएंगे तो हम उनको डिलीवर करके ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ दिखाएंगे। हम वहाँ पे एक लाइफस्टाइल बिल्ड करने जा रहे हैं। जमशेद इकबाल मेरा नाम है। जे ग्रुप के नाम से पाक करब में हमारा ऑफिस है। पाक रेजिडेंशिया जो है उसके हम ऑथराइज्ड हैं। अच्छी टीम है और इनका सिर्फ एक मिशन है कि लोगों को डिलीवर करना। चौधरी साहब को हम लोग तकरीबन 2013 से जानते हैं और उनका जो मिशन है और उनका जो शुरू से जो एक प्योरिटी है और मतलब इतने नीट क्लीन माइंड के, तो इनका प्रोजेक्ट भी ऐसे नीट क्लीन ही होगा। इसी वजह से हम ऐसे ही बंदों के साथ अटैच होना चाह रहे थे जो इस तरह डिलीवर करने का जज्बा रखते हैं और अच्छी हमदर्दी के साथ। और उनकी हर बात में ये है कि हम एक टीम और हम एक ऐसा काम करना चाहते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें। उम्मीद जिनकी नीयत अच्छी है उनके साथ अल्लाह की मदद है। इस मिशन के साथ हम इनके साथ रह चुके हैं। मेरा नाम जाहिद चंदड़ है और मैं MZ मार्केटिंग से मेन ऑथराइज डीलर हूँ। डिनर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। बाकी बात जो डेवलपमेंट की है और जो प्रोजेक्ट की है, सईद साहब जो है ना वो कमिटमेंट के पक्के हैं, जो इसके CEO हैं पाक रेजिडेंशिया के, और अल्लाह के फजल करम से हम इसको देखते हैं कि ये जल्द से जल्द हो पकड़ेगा। कहने का मकसद ये है कि ऐसी सोसाइटी पूरे झंग में नहीं है जिसकी मेन बुलेवार्ड 210 फीट मिनिमम 40 फीट के रोड है और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है। वो ऐसा अभी पूरे झंग में क्या फैसलाबाद में भी नहीं है। मेरा नाम अदील शहरियार है और मैं अल अजीज़ एस्टेट एंड बिल्डर्स का CEO हूँ और मैं पाक रेजिडेंशिया का अल्हम्दुलिल्लाह ऑथराइज डीलर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल जो हमारा डे है वो बहुत अच्छा स्पेंड हुआ। बहुत ही अच्छे न्यू आगे प्रोजेक्ट में जो वर्किंग है उसके बारे में डिस्कस किया गया और प्लान्स किए गए, जिस तरह के मेन बुलेवार्ड रोड, उसकी मेन एंट्रेंस, इलेक्ट्रिसिटी वर्क, पावर प्लांट, 24 आवर सिक्योरिटी, सब चीज़ें डिस्कस की गई। इवन के वहाँ पे जंग में आज तक किसी ने मेडिकल कॉलेज नहीं डिलीवर किया, इंशाल्लाह ताला पाक रेजिडेंशिया वो भी वहाँ पे डिलीवर करेगी। इसका जो पेमेंट प्लान है वो ऐसा है कि नॉर्मल इनकम वाले अफराद जो हैं वो बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं।
देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि उसके डेवलपर का इंटरेस्ट कितना है उसमें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सईद साहब के साथ पिछले 2 सालों से काम कर रहा हूँ। उनके साथ काम करते हुए मैंने ये चीज़ देखी है कि उनका जो एम है वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मेरे अपनी ज़ात के लिए हो। वो कहते हैं कि मेरे साथ दूसरे लोग और बाकी अवाम जो है वो भी साथ बढ़े। सईद साहब का जो एम है कि इंशाल्लाह ताला मैं अपना ये जो प्रोजेक्ट है इसको ऐसा बनाऊँ कि पूरे पाकिस्तान में इस जैसा प्रोजेक्ट ना हो। पूरी उम्मीद हूँ मैं कि वो जल्द इसको डिलीवर करेंगे। मेरा नाम है जमशेद काशिफ, मैं जे ग्रुप से हूँ। हम 2 भाई पिछले तकरीबन 5-6 साल से हम चला रहे हैं। हम पाक रेजिडेंशिया के ऑथराइज पार्टनर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सईद साहब से भी काफ़ी देर का तल्लक है। इंशाल्लाह हमें इसका फ्यूचर बहुत अच्छा देख रहे हैं, इसी वजह से हम पार्टनर बने हैं। तो इंशाल्लाह जो सईद साहब कह रहे हैं ये वो करते हैं, काफ़ी देर से इनके साथ चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। पाक रेजिडेंशिया जंग को भी एक लाहौर की निस्बत का एक सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह वैसे ही बनेगी। जी, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद याकूब है और अल हरमैन एस्टेट रहमान गार्डन 2015 से मैं काम कर रहा हूँ। पाक रेजिडेंशिया का ऑथराइज्ड डीलर भी हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। दोस्तों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है, काफ़ी इत्मीनान हुआ है। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन थे। मैं जानता हूँ चौधरी बरादरान को एक अरसे से, मैंने पहले भी काम किया इनके साथ 2015-16 में, बल्कि मुझे काम शुरू भी उन्होंने करवाया है। लेन देन के जो मामलात हैं उनके जो असल में जो चीज़ होती है, जो सोच होती है, उनकी सोच बहुत बड़ी है। इंशाल्लाह कामयाबी होगी। मेरा नाम राय सरदार अहमद है और प्रॉपर्टी से मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से काम कर रहा हूँ शरकपुर रोड पे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाक रेजिडेंशिया जंग में ऑथराइज डीलर के सरप्राइज सर अंजाम दूंगा इंशाल्लाह। चौधरी सईद साहब को 2014 से मैं जानता हूँ। इनकी तमाम कमिटमेंट्स, इनका जो सोच है वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे मैं मुतमिन हूँ। पाक रेजिडेंशिया जब उन्होंने मुझे एक जस्ट मैसेज मिला है तो मैंने कोशिश की कि मैं सबसे बढ़कर यहाँ पे काम करूँ और मैं पूरी उम्मीद हूँ उनकी सोच से, उनके विजन से कि वो अल्हम्दुलिल्लाह इसको परफॉर्म करेंगे और मैं बहुत हैप्पी हूँ इसमें। जी, मेरा नाम गुलफाम अफजल है और मेरी जो स्टेट है वो अर रहमान रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स है और हम पाक रेजिडेंशिया के ऑथराइज डीलर हैं। बेसिकली जो पाक रेजिडेंशिया के जो ओनर्स हैं उनके साथ हम पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया जिसको हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने का हमारा मकसद ये है 8 साल में जो पाक रेजिडेंशिया के जो ओनर्स हैं उनकी नीयत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। जो इन्होंने कहा है, हमारी इससे वाबस्ता जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा है पाक रेजिडेंशिया के हवाले से। देखें, ख्वाब ही है ना, जो ऑनर्स हैं पाक रेजिडेंशिया के वो ख्वाब देखते हैं, उसकी ताबीर करते हैं और इंशाल्लाह वो फुलफिल करते हैं। अब मैं जिन शख्सियत को स्टेज पे आने की ज़हमत दे रहा हूँ वो हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही काबिल एहतराम। उनकी जो जॉब रही वो बहुत ही शानदार रही। एक अच्छे ऑफिसर के तौर पे उन्होंने पंजाब पुलिस में सर्व किया, बड़े ऑनरेबल तरीके से। एसएसपी रिटायर्ड हुए। इससे बढ़कर ये है कि वो चद्दड़ फैमिली के जो रूहे रवां हैं उनको हर वक्त गाए बगाए अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली के लोगों को रहनुमाई करते हैं, उनकी अपने बच्चों की तरह समझते हैं। और बिलखुसूस सईद साहब के साथ जो उनकी वालहाना मोहब्बत या रहनुमाई उनकी रही है, मैं समझता हूँ कि आज जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, जिस जगह पे आज सईद साहब पहुँचे हुए हैं, उनकी कामयाबियों में उनका एक बहुत बड़ा नुमायाँ किरदार है। सो प्लीज़ हम सब के रिस्पेक्टेबल, बहुत ही काबिल इज़्ज़त मैं दावत देना चाहूँगा जनाब चौधरी अहमद खान चदर साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमें अपने कीमती कलमात से नवाजें। जनाब अहमद खान चदर साहब, मैं चाहूँगा कि खड़े होकर उनका हम इस्तकबाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चौधरी मोहम्मद सईद चदर साहब, चौधरी मसूद चदर साहब, दूसरे भाई साहबान व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन हाज़रीन, मैं सबको अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ। आज चदर कौम की हैसियत से मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि एक हमारी कौम का एक सपूत, जिनकी सोच में बड़े अरसे से जानता हूँ कि बड़ी ऊंची सोच थी। एक दफ़ा इन्होंने एजुकेशन पे लेक्चर दिया तो मैं हैरान हो गया कि हमारा स्टेटस जो है हमारी कौम का, और ये कहाँ हमें ऊपर उठा के ले जा रहे हैं। इनकी सोच पहले दिन से बड़ी ऊंची सोच है, बड़ा ऊंचा सोचते हैं। तो ये ज़मीन उस एरिया में ख़रीदी, उस एरिया को मैं बड़ा बखूबी जानता हूँ। वो जंग और तोबा टेक्स के दरमियान है। मैं SDPO कमालिया रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इन्होंने इतनी दानिशमंदी और अक्लमंदी से वो जगह सिलेक्ट की है कि जंग शहर भी करीब, तोबा शहर भी करीब, कमालिया भी करीब, गोजरा भी करीब और रजाना भी करीब, सारे शहरों के मिल के
उधर एक बहुत बड़ा शहर आबाद हो सकता है। वैसे भी हमारी इस्लामी रिवायत भी ये है कि बड़े शहरों में आबादी कम की जाए और नए शहर आबाद किए जाए, और मेरे ख्याल में इनकी सोच जो है बिल्कुल इस्लामी तरीके के मुताबिक जिन असूलों पे हुकूमत को, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, उन्होंने चौधरी सईद साहब को ऐसी सोच अल्लाह ने दी है। मैं तो हैरान हो गया हूँ ये सारा देख के कि अंडरग्राउंड बिजली होगी, स्कूल, कॉलेज और सारे पार्क्स, हर चीज़ जो है, सेहत की सहूलत, स्कूल की सहूलत। तो मेरे ख्याल में मैं तो ये इतनी चीज़ें देख के मैं सोच रहा था कि मैं क्यों ना घर उधर बना लूँ, कि इतनी अच्छी खूबसूरत जगह है कि हर चीज़ की सहूलत, हर चीज़ की सहूलत। उस इलाके के लोगों के लिए ये इतनी बड़ी सहूलत है कि वो लाहौर और पिंडी और इस्लामाबाद जैसी सहूलतें उस इलाके में जंग अक्टूबर 1 के दरमियान में हासिल कर लेंगे, बड़े सुकून और पुरसुकून माहौल में अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। तो मैं इनको प्रोजेक्ट जो है पाक रेजिडेंशिया के नाम से इसको लॉन्च करने की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये इनकी बड़ी हिम्मत है, इनकी बड़ी सोच है। सोच आला सोच तो वैसे ही इनकी है ना, वो तो पहले दिल से ऊंचा सोचते हैं, ये छोटी सोच इनकी नहीं है। तो ये जो है उस जंगल में जाके इन्होंने इतना कुछ जो आबाद किया है, तो ये माशाल्लाह एक बहुत खूबसूरत शहर बनेगा उधर। 210 फुट मेन बुलेवार्ड, 210 फुट इतनी चौड़ी सड़कें उस इलाके में। तो ये इनकी बड़ी हिम्मत है। मैं इनके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, अल्लाह ताला इनको इस चीज़ का सिला दे। सब दोस्तों, भाइयों, सबसे मैं सलाह करता हूँ, मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने कीमती अल्फाज से हमें नवाजा। इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई हमेशा हमारी शामिल हाल रहेगी और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम प्रोग्राम के बिल्कुल इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। हमारा ताल्लुक तकरीबन 20 साल पुराना है। तब से मैं इनको एक बाहौसला और हमेशा मुस्बत सोच रखने वाला इंसान पाया है। आप एक मेहनती, पुरअज़म और हमेशा पुरुम्मीद रहने वाले शख्स हैं। उनका हमेशा से ये जज्बा रहा कि सिर्फ खुद कामयाब नहीं होना बल्कि अपने साथियों को भी कामयाब करना है। उनके ख्वाब, उनकी सोच हमेशा बहुत बड़ी रही। जो भी काम उन्होंने सोचा, जिस काम के बारे में ठान ली, उसको पूरी दयानतदारी से पाया तकमील तक पहुंचाया। बहुत शफीक और दूसरों को साथ लेकर चलने वाले इंसान, अच्छे कारोबारी शख्सियत होने के साथ साथ एक बहुत ही मुखलिस इंसान है। जितनी भी बड़ी मुश्किलात उनके सामने आई आज तक, उन्होंने हमेशा मुस्कुराते हुए उनको ना सिर्फ फेस किया बल्कि उसको चैलेंज समझकर उस पर काबू पाया, उस पर ओवरकम भी किया। इस हाउसिंग प्रोजेक्ट का ख्वाब उन्होंने कई साल पहले देखा और हमारी आपस में कई दफ़ा इस पे गुफ्तगू भी हुई और उन्होंने हमेशा ये कहा, जिस दिन भी हमने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो उसका जो मेन बुलेवार्ड होगा वो जो लाहौर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है बैरिया टाउन, उस जितना होगा। जो ख्वाब इन्होंने देखा आज अल्हम्दुलिल्लाह पाक रेजिडेंशिया जंग की सूरत में आपके सामने है। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड प्लीज वेलकम CEO AR रहीम डेवलपर और पाक रेजिडेंशिया, हमारे दिलों की धड़कन, इस प्रोजेक्ट की जान, जनाब मोहम्मद सईद चदर साहब। वेलकम प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक चाइनीज रेसिपी भी है कि जब आप दोनों हाथों को एक दूसरे से टकराते हैं तो आप पे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स जो हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है और आपके चेहरे पे लालगी भी आ जाती है और सब आपको अच्छा समझते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जितने दोस्त यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं वो मेरे दिल की धड़कन है, पाकिस्तान की आन है, शान है, तो अपने लिए एक दफा हाथ उठाकर भरपूर क्लैप कीजिएगा। ये सिर्फ इसलिए था कि आप थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाएं, एक्टिव हो जाएं। मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ 2-3 बातें करनी है और उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं और आज के इंतजामात हैं उनमें हायल नहीं होना चाहता। सबसे पहली बात कि सबसे बड़ी और सबसे कमाल कुव्वत और सबसे बड़ा बिलीव वो आपको होना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत पे। और जब आपका यकीन कामिल होता है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत पर आपको पूरा एतमाद होता है, पूरा यकीन होता है, तो फिर मैं तो उसको इस शेर में समोने के लिए कहूंगा कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, फिर सारे काम हो जाते हैं जब बंदा कोशिश करता है। जब इंसान लगन के साथ कोशिश करता है तो फिर इंशाल्लाह ताला सारे काम होते चले जाते हैं। लेकिन उसका बिलीव जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत पे स्ट्रांग हो। उसका दूसरा बड़ा फायदा अल्लाह पर बिलीव का ये है, आप माशाल्लाह सारे बिलीवर बैठे हैं, कि जब आप अल्लाह पर यकीन करके चलते हैं तो फिर आपके
अंदर के खौफ खत्म हो जाते हैं और इंसान की तरक्की में, डिसीजन में, इंसान के हर बड़े स्टेप में सबसे बड़ी रुकावट जो होती है ना जी, वो सबसे पहले इंसान के अंदर का खौफ होता है जो उसको आगे नहीं बढ़ने देता, जो उसको वसवसे देता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, अजीजों कुर्बा क्या कहेंगे। जब आप इस खौफ से मावरा होकर सोचते हैं और अल्लाह पर यकीन करते हुए सोचते हैं तो फिर इंशाल्लाह कामयाबियां आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाती हैं और फिर और कोई नहीं, अल्लाह आपका हाथ थाम लेता है कि इसने मुझ पे बिलीव किया है, अब मैंने इसे कामयाब करना है। यही बिलीव और यही उम्मीद के साथ अल्लाह के फजल व करम से हम आगे बढ़े और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि ये काम आना चाहिए। तो उस काम को सीखने के लिए जो मुझे इदारा मुयस्सर आया वो अल्लाह के फजल व करम से आप सब दोस्तों का जाना पहचाना नाम है अल रहमान गार्डन फेज 2। और मैं आज शुक्रगुजार हूं उन तमाम हस्तियों का जिनसे मैंने वहां से सीखा और उनमें सबसे बड़ी हस्ती जो है वो मियां मुश्ताक अहमद साहब हैं, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस काम को गिफ्ट किया और कहा कि आप करना शुरू करें, मैं इंशाल्लाह ताला आपकी बैक पे खड़ा हूं, आपको कभी भी इंशाल्लाह ताला यूं समझ लें कि मायूस नहीं होने दूंगा और अल्लाह के फजल व करम से आप सबसे ज्यादा कामयाब होंगे। और अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, वो गाइड करते गए, मैं इंशाल्लाह ताला उसके लिए मेहनत करता चला गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से और उनकी दुआओं से और उनकी रहनुमाई से एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा हूं। खुद ये फासला जो तय किया है उसमें सबसे बड़ा रोल नो डाउट मियां मुश्ताक अहमद साहब का है और मियां अब्दुल रज़ाक साहब का है कि जिन्होंने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह साथ दिया। तो उनके लिए एक दफा भरपूर क्लैप कर दीजिए। कोई भी काम हो वो विजन और मिशन के साथ हो सकता है। जब आपका विजन हो और मिशन हो तो फिर इंशाल्लाह ताला जिस विजन के साथ उस मिशन को आप कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो उसी तरह का खूबसूरत बनता चला जाता है। मेरा विजन और मेरा मिशन बड़ा सिंपल है कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमने बहुत बड़े बड़े नाम हैं, DHA है, बैरिया है, सिटी हाउसिंग है, रहमान गार्डन है, अल जलील है, गिनते जाएं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन मैं माजरत के साथ इन सबको बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स तो समझता हूं, लेकिन यकीन मानिए मेरा यकीन है कि विजन और मिशन मेरा इन सबसे अलग और इनसे बेहतर होगा अल्लाह के फजल। सबसे पहले जब आप अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और अल्लाह पे यकीन करते हुए, अल्लाह की जात को सामने रखते हुए बड़ा सोचते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा मददगार आपका अल्लाह रब्बुल इज्जत होता है आपका। तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़ी कोई हस्ती है जी? अगर नहीं है तो फिर इंशाअल्लाह ताला जो उसने नायब बनाया है उसकी सोच से बड़ी भी कोई चीज नहीं। इस सारे विजन और मिशन को सामने रखते हुए इसका मैं मैप रेडी करवा रहा था, तो जब मैंने अपने बारे में थोड़ा सा अपने विजन को बताया कि मैं इस तरह के रोड्स चाहता हूं, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता हूं, तो मुझे दोस्त ने कहा कि जी आप बराए मेहरबानी जरा हाथ हौला रखें, वेस्टेज बहुत ज्यादा आएगी। दोस्त यहां पर ही मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको भी मजीद तरक्कियां दे। उन्होंने भी माशाल्लाह मेरा यूं समझ से पल पल साथ दिया है और हर मुश्किल वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ रहे हैं। नाम तो यकीनन उनका आप जानते ही हैं, मैं तो उनको प्यार से खूबसूरत लड़का या सोना मुंडा कहता हूं। अब्दुल कदीर साहब जी भरपूर क्लैप कीजिएगा। उन्होंने कहा कि वेस्टेज बहुत ज्यादा आएगी। मैंने कहा जी कोई इशू नहीं है, वेस्टेज का इशू ना देखें, ये देखें कि लोगों को आने वाले 35, 40, 50 साल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो गलियां, वो सड़कें, वो माहौल तंग तो नहीं लगेगा। तो इस विजन के साथ हमने उसका मैप रेडी किया और फिर बात आई कि हम मेन एंट्रेंस कैसी बनाएं। तो मैंने कहा जी चेक करते हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी एंट्रेंस कौन सी है। तो हमने चेक किया तो ब्लू वर्ल्ड सिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है चक्री रोड पे, बड़े अच्छे दोस्त हैं साथ नजीर साहब, उन्होंने लॉन्च किया था। तो पता किया कि उनकी जो मेन एंट्रेंस है वो 490 फुट की है, जो उनका गेट डिजाइन हुआ है वो 490 फुट में हुआ है। तो मैंने कहा जी फिर पाकिस्तान में सबसे बड़ा हमें बनाना है। कहते हैं बहुत खर्च आएगा। मैंने कहा जी खर्चे को ना देखें, इंशाल्लाह ताला हम उस अल्लाह पे बिलीव करके काम कर रहे हैं जिससे बड़ा कोई नहीं है, आप इसको बढ़ाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 500 फुट उसकी एंट्रेंस रखी और मैं ये समझता हूं ये पाकिस्तान के लिए एक शानदार एंट्रेंस है। कमर्शियल की बात आई तो हम आज तक बहुत अच्छे अच्छे कमर्शियल्स देखते आए हैं, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो कमर्शियल डिजाइन किया है वो अल्लाह के फजल व करम से हम लॉन्च पे उसके बारे में सारी गुफ्तगू करेंगे। आप यकीन मानिए आपका हर कमर्शियल फ्रंट और बैक ओपन है, आपका कोई कमर्शियल ऐसा नहीं है जो फ्रंट और बैक ओपन ना हो। हमने उसके लिए इंशाल्लाह ताला नाम भी सोचे हैं कि वो उनके नाम क्या होंगे और किस तरह होगा और उसको आगे हमने कैसे लेके चलना है। फिर
पाकिस्तान की बहुत सारी सोसाइटीज हैं, पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस हो रही है कि किसी भी सोसाइटी में जब तक उसका इकोनॉमिक जोन एक्टिव ना हो तो वो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तगोदो में हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको खुशखबरी सुनाएंगे। उस पूरे एरिया के लिए एक हम इकोनॉमिक जोन डिजाइन करेंगे और अल्लाह के फजलो करम से 150-200 किलोमीटर की रेंज में, चूंकि वो सी पैक रूट भी है, टोबा इंटरचेंज है, जो सड़क है ये चूंकि जनूबी पंजाब को लिंक करती है आपके बस्ती पंजाब के साथ, तो ये सी पैक रूट भी है, तो इंशाल्लाह ताला उस पे आपको एक बेहतरीन इकोनॉमिक जोन भी मिलेगा। मैं कमर्शियल से एक स्टेप ऊपर चला गया हूं। आप दुबई में देखें कुछ नहीं है, इकोनॉमिक जोन्स हैं। आप कनाडा में देखें इकोनॉमिक जोन्स हैं। आप चाइना में देखें इकोनॉमिक जोन्स हैं। आप शंघाई जाएं आपको इकोनॉमिक जोन मिलेंगे। हांगकांग छोटा सा शहर है लेकिन इकोनॉमिक जोन है। तो पाकिस्तान में बहुत सारी सोसाइटीज लोगों ने डेवलप की हैं लेकिन इकोनॉमिक जोन के बारे में नहीं सोचा। जब इकोनॉमिक जोन और इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान की होगी तो ये मुल्क हकीकत में तरक्की करेगा और इंशाल्लाह ताला उस पर हम वर्क कर रहे हैं। जो इस प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है, आप जहां मर्जी चले जाएं, जिस मर्जी कौम को उठा लें, आप इस्लाम को स्टडी कर लें, आप इंटरनेशनल जितने ऑथर्स हैं उनको स्टडी कर लें, जब तक आप अपने इलाके का, अपने एरिया का, अपनी कौम की स्कूल ऑफ थॉट को नहीं चेंज करते, आप चेंज नहीं ला सकते। और स्कूल ऑफ थॉट को चेंज करने का एक ही हल है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, वो है सिर्फ और सिर्फ इल्म का रास्ता। तो मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि इंशाल्लाह ताला हमने एक ऐसा करिकुलम डिजाइन करना है और ऐसी स्कूलिंग लेके आनी है जिससे अल्लाह के फजलो करम से ना तो फिरका वरियत फैले और ना ही एक दूसरे के साथ हम उलझें, बल्कि खालिसतन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए और इस उम्मे मुसलमान के लिए बेहतरीन वर्क करें। और उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से हम वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जो आपको स्कूल सिस्टम मिलेगा वो यूनिक होगा, बेहतरीन होगा और आने वाली नस्ल के लिए एक बेहतरीन बुनियाद होगा अल्लाह के फजल इंशाल्लाह ताला। उस पूरे एरिया में या तो मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में है और उसके बाद जो मेडिकल कॉलेज है वो मुल्तान में है या लाहौर में है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत दूर आके रहना पड़ता है। इंशाल्लाह ताला कमिंग डेज में अल्लाह के फजल करम से हम इंशाल्लाह एक बेहतरीन यूके के साथ एफिलिएटेड जो है वो मेडिकल कॉलेज उस इलाके को देंगे। वक्त जरूर लगेगा लेकिन आएगा जरूर अल्लाह के फजल करम से। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने इस प्रोडक्ट को अपनी प्रॉफिट के साथ रिलेट नहीं किया, मैंने इस प्रोडक्ट को रिलेट किया है वहां के उस बासी के साथ, वहां के उस रहने वाले के साथ जिसके घर में सिर्फ एक भैंस है, भैंस को पालता है और उसके बाद उससे वो अपनी रोटी रोजी का इंतजाम करता है। मैं कहता हूं अगर वो 3-4 किलो भी दूध देती है, अगर 1 किलो दूध वो सेल करता रहे पूरा महीना तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्लॉट की किस्त पे कर सकता है। मैंने बड़ी बेसिक और सिंपल मिसाल दी। आपकी कामयाबी में जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो आपकी टीम होती है। टीम को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं तो ऐसे ही कहता हूं, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। तो जब आप टीम को साथ लेके चलते हैं और टुगेदर वी ग्रो, जब हम इकट्ठे आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी रुकावट नहीं कि हम कामयाबी हम किनार ना कर सके, हम कामयाबी को ना समेट सकें। मेरे आपके डीलर्स नहीं है ऑथोराइज, मेरी आप फैमिली के मेंबर्स हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे सबसे पहले वो सिपाही हैं जिन्होंने अल्लाह के फजलो करम से मेरे ख्वाबों को और अपने ख्वाबों को पूरा करना है। और मैंने बड़ी बेहतरीन और जबरदस्त टीम सेलेक्ट की है। बहुत बड़ा नाम कोई नहीं है मेरे साथ, माजरत के साथ मेरे साथ मैक्सिमम वो लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, इवन पीएचडी भी हैं बहुत सारे दोस्त, और वो लोग भी हैं जो डिफरेंट शोबों के साथ ताल्लुक रखते हैं, उनका प्रॉपर्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और वो लोग भी हैं जो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे सियासतदान हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, पब्लिक रिलेशन का उनको बहुत ज्यादा फिक्र रहती है हर वक्त, मजहबी स्कॉलर्स हैं। क्यों ये सारा गुलदस्ता क्यों इकट्ठा किया गया है? इसलिए इकट्ठा किया गया है उस इलाके की इर्द गिर्द का जितना माहौल है उसमें इंशाअल्लाह ताला लोगों की जिंदगियों में चेंज लेकर आएंगे। एक इदारा है रीट के नाम से, आप गूगल करें तो भी आपको मिल जाएगा। उसकी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हुई हैं। उसकी डॉक्यूमेंट्री सुने तो बड़ी सिंपल और सादी सी उसमें गुफ्तगू है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका और जापान की जो हुई जंग अजीम,
तो अमेरिका की अपनी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो बड़ी पतली हो चुकी थी। तो उसने थिंक टैंक्स को बुलाया और उसने कहा कि भाई सोचो कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं जो पैसा कमाते हैं और पैसा जमा करते हैं, वो किस सूरत में रखते हैं उस पैसे को। क्या वो गोल्ड खरीद के रखते हैं, क्या वो जमीन खरीद के रखते हैं, वो अपनी जमा पूंजी किस सूरत में रखते हैं। उन्होंने जब 4, 5, 6 माह रिसर्च करने के बाद कहा मैक्सिमम लोग अपनी मौत से पहले उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं कोई ना कोई प्रॉपर्टी बना जाऊं जो मेरी नस्ल के काम आती रहे। तो रिजल्ट ये निकला कि सबसे ज्यादा लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और वो अपनी जमीन बनाते हैं, अपार्टमेंट्स बनाते हैं या प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो सबसे पहले वाशिंगटन डीसी में हाई राइज बिल्डिंग के बारे में सोचा गया और पूरी दुनिया के बिजनेसमैन को दावत दी गई कि आप यहां पर तशरीफ लाएं। उनको प्रेजेंटेशन दी गई कि आप यहां पर आएं, आपको इस तरह की हम लेविश किस्म की जो लिविंग है वो देंगे और आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करें और ये 10 साल बाद डबल हो जाएगी, फिर अगले 10 साल बाद ये 4 गुना हो जाएगी। और पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स ने रुख किया और अमेरिका को कहां से कहां ले गया, क्योंकि सारी दुनिया का जो पैसा था वो उधर शिफ्ट होना शुरू हो गया। उसके बाद इसी सिस्टम को कनाडा ने अपनाया, उसके बाद इसी सिस्टम को दुबई ने अपनाया। क्या है दुबई में सिवाय रेत के? जस्ट हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और उन बिल्डिंग्स को आबाद करने के लिए उसने एंटरटेनमेंट मुहैया कर दी है। पाकिस्तान में जितनी ग्रो कर सकते हैं आप प्रॉपर्टी में जितनी जल्दी शायद कोई फील्ड हो, लेकिन हमें विजन और मिशन के साथ चलना है। हम इसको सिर्फ ये ना समझें कि ये कोई एक डील है, 2 डील्स है और इससे हम ये 50, 60, 70 लाख रुपए, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपया कमा लेंगे। ये आपका फ्यूचर है। मैंने जब काम स्टार्ट किया था तो मियां साहब से मैंने कहा था कि मियां साहब मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा काम पैसों से नहीं होता, काम सोच से होता है। सोच है आपके पास तो पैसों की फिक्र नहीं करनी, मैं हूं। ये हिम्मत दी थी, यकीन मानिए उसके बाद पैसों की जरूरत नहीं पड़ी। तो बात यह है कि अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे मेरे साथ, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम बहुत जल्द आगे चलेंगे। आज आने वाले जितने भी डीलर हजरात हैं, जितने भी मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं, जितने दोस्त यहां पर आज तशरीफ लाए, मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करता हूं, उनको खुश आमदीद कहता हूं और उनसे ये कमिटमेंट करके जा रहा हूं कि अगले 8 से 10 साल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से मैं ये चाहता हूं, ये कोई डेवलपर नहीं कहता, मैं ये चाहता हूं जितने दोस्त यहां पर बैठे हैं इनका अल्लाह के फजल व करम से जब अल्लाह इनको हिम्मत दे, इनके अपने अपने प्रोजेक्ट्स हों, ये खुद आगे बढ़े और डेवलपर्स बने। इस मुल्क को डेवलपर्स की जरूरत है। ये डेवलपर आपको कभी नहीं कहेगा कि मेरा डीलर जो वो डेवलपर बन जाए। मैं कह रहा हूं, मेरी ख्वाहिश है कि आप अल्लाह के फजल व करम से आने वाले वक्त में पैसे इकट्ठे करें, सोच अच्छी करें और आने वाले वक्त में एक स्टेप फॉरवर्ड जाए। मैं आपका साथ दूंगा। वजह आप ग्रो करेंगे तो मैं ग्रो करूंगा, आप आगे बढ़ेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा और आपका कामयाब होना मेरे लिए जरूरी है। अगर आप कामयाब होंगे तो मैं कामयाब होऊंगा और इंशाअल्लाह ताला जब आप कामयाब होंगे, मैं कामयाब होऊंगा, तो इंशाअल्लाह ताला वहां की गिरदुनवा के लोग भी सक्सेसफुल होंगे। चौधरी अहमद खां चद्दर साहब जो कि हमारे पूरी चद्दर कौम के सरपरस्त आला भी हैं और चद्दर कौम को इंट्रोड्यूस करवाने में सबसे बड़ा रोल है अल्लाह के फजल व करम से। ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत बड़ा नाम है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ मेरी आज से 2004 में एक सेरेमनी थी, वहां पे सबसे पहले इनके साथ इंटरेक्शन हुई, तो मैंने कहा जी बस पल्ला पकड़ लें और इस सोच को लेके आगे बढ़ना शुरू कर दें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई और आहिस्ता 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 मेहनत करते हुए आगे बढ़े। और दूसरी ख्वाहिश मेरी हमेशा ये होती है, मैं जब कोई काम शुरू करता हूँ सबसे पहले वालदा मोहतरमा से दुआ करवाता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें लंबी और सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए, वो हयात है। और उसका इफ्तिताह जो है, मैंने रेस्टोरेंट बनाया 2007 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अहमद खां चद्दर साहब से इफ्तिताह करवाया। आज रेनोवेट हो गए, दोबारा अल सईद डेरा के नाम से वो चल रहा है। और उस इलाके में जब कोई रेस्टोरेंट नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कदम रखा था। लोग कहते थे इस चौक पे कौन आएगा तुम्हारे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी से हमकिनार है। वो बूटा भी अहमद खां चद्दर साहब ने लगाया था और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह फला है, फूला है। फिर मैंने जमीन खरीदी, अहमद खां चद्दर साहब के पास गया, इनसे मुबारकबाद भी वसूल की और इनसे गाइडलाइन भी वसूल की। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब ये प्रोजेक्ट आया है, इसको लॉन्च करने जा रहा हूं। तो फिर मैंने कहा कि अहमद खां चद्दर साहब से मैंने इंशाल्लाह इसकी ओपनिंग सेरेमनी या लॉन्चिंग सेरेमनी करवानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी काम हो गया, उन्होंने दुआ भी फरमा दी है। तो मुझे यकीन है पक्का कि इंशाल्लाह ताला हम कामयाबी और कामरानी के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ सैयद शुएब शाह साहब जो कि अल्हम्दुलिल्लाह XMPA फ्रॉम पिंडी भटिया, एक जानी पहचानी शख्सियत हैं,
एक दबंग शख्सियत है मैं कहूंगा, और अल्लाह के फजल करम से खत्म नबूवत जो कि हम सबका मुश्तरका असासा है, उस पे अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बड़ी कमांड है। और उलमा और मशाइख विंग जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, उसके सूबाई सदर भी हैं, और डिफरेंट टीवी शोज में भी आप देखते हैं। आज हमारी इस महफिल की वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीनत हैं। मैं अपना इख्तिताम करूंगा और उनको कहूंगा कि वो चंद अल्फाज भी बोलें, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला दुआ के लिए कहूंगा जनाब मोहतरम कामरान बुखारी साहब को कि वो तशरीफ लाएं, वो दुआ फरमाएंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम खाने की तरफ चलेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम कीजिएगा जनाब मोहतरम शुएब शाह साहब को, भरपूर क्लैप में वेलकम कीजिएगा जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हबाब ज़िवाकार मोहम्मद सईद चौधरी साहब मेरे बड़े प्यारे भाई, उन्होंने बड़ी वजाहत से अपने प्रोजेक्ट का तारुफ भी करवाया, और मुझे साथ साथ ऐसे भी लग रहा था कि कोई मजहबी स्कॉलर बात कर रहा है। मेरा दीन ये कहता है कि तुम सिर्फ उसके बारे में बात कर सकते हो जिससे तुम्हारा कोई ताल्लुक हो, तुमने उसके साथ कारोबार किया हो, तुमने उसके साथ वक्त गुजारा हो, तुमने उसके साथ सफ़र किया हो, उसके मुतालिक तुम कोई राय दे सकते हो। इसके अलावा तुम किसी के मुतालिक अपनी राय नहीं दे सकते। तो मेरा क्योंकि अपने प्यारे भाई मोहम्मद सईद चौधरी साहब आपसे अरसा दराज से ताल्लुक़ है, बहुत सी मीटिंग्स की हैं इनके साथ, बहुत सा वक्त गुजारा है इनके साथ, और एक सर्कल है दोस्तों का जो हम सारे दोस्त हैं, हम सारे दोस्त इकट्ठे हैं इनके साथ। लेकिन जब भी हम दोस्त इकट्ठे बैठते हैं इनके अलावा, तो हमने हमेशा इनकी तारीफ की है। और यही अर्ज करूंगा कि बड़े इखलास वाले, प्यार वाले, मोहब्बत वाले, साफ गो इंसान हैं, और ये इनकी मेहनत का समर है जो आज ये इंशाअल्लाह और आइंदा भी आने वाले दिनों में अल्लाह परवरदिगार आलम इनको अता फरमाएगा। और दूसरी बात यह अर्ज करूंगा कि इस्लाम ये कहता है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि किसी को काम करने का मौका फराम किया जाए। एक अंसारी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमजोर हूं, गरीब हूं, मोहताज हूं, मेरी मदद फरमाइए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे घर में कोई चीज है? अर्ज की हुजूर एक टाट है, और वो मैं ले आता हूं, कुछ कपड़े हैं, थोड़ा सा माल है। ले आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को लहरा के बताया कि लोगों ये खरीदोगे? एक ने कहा जी मैं खरीदूंगा 1 दिरहम में। फरमाया कोई और? एक ने कहा मैं 2 में खरीदूंगा। तो आपने वो 2 में बेच के 2 दिरहम उसको दे के कहा 1 दिरहम का घर के लिए राशन ले जाओ और 1 दिरहम का कुल्हाड़ा ले आओ। जब वो कुल्हाड़ा लेके आया तो अल्लाह के नबी ने उसे अता फरमाया और फरमाया जंगल में जाओ, लकड़ियां काटा करो और शहर में बेचा करो, और 15 दिन बाद मुझे आके मिलना। जब वो 15 दिन बाद मिला तो उन लकड़ियों की कटाई से 10 दिरहम कमा चुका था। तो हबाब वकार एक अच्छा मौका एक मुखलिस दोस्त ने, एक साफ गो दोस्त ने, एक खूबसूरत दोस्त ने हमें अता किया। तो मैं तो बस ये अर्ज करूंगा, मुझे पता है पहले दिन से हम इनके साथ हैं, और इंशाअल्लाह मैं तो इनके साथ हूं। जो थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूं, चूंकि मैं पीर भी हूं, लेकिन इसके साथ साथ मेरे बुजुर्गों का हुक्म है कि हम रिस्क अपने हाथों से कमा के खाते हैं। तो मैं तो इंशाअल्लाह इनके साथ हूं और साथ रहूंगा। और यकीनन जैसा कि उन्होंने कहा कि ये एक फैमिली है, तो उम्मीद है कि ये चेहरे आइंदा भी हमें नजर आएंगे और एक फैमिली की तरह रहेंगे। बाकी अल्लाह परवरदिगार आलम अपना करम फरमाएगा, क्योंकि देने वाला वही है। किससे मांगे, कहां जाएं, किससे कहें। और दुनिया में हाजत रवा कौन है? सबका दाता है तू, सबको देता है तू। तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है? और कौन सुनता है फरियाद मजलूम की? किसके हाथों में कुंजी है मकसूम की?
رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا, مسند آرائے بزم عطا کون ہے. انبیاء, اولیاء, اہل بیت نبی, تابعین و صحابہ پہ جب آپ بنی, گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی, تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. مہربانی, شکریہ, اللہ آپ کو خوش رکھے اور یہ فیملی آباد و شاد رہے. شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ, انہوں نے الحمدللہ ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے. سادات الحمدللہ پہلے بھی بڑے پیارے پیارے دوست میرے ساتھ تھے اور الحمدللہ اب شاہ صاحب بھی ساتھ ہیں, تو یہ تو سونے پہ سہاگے والی بات ہے. میرے فیملی کے ماشاءاللہ بڑے بھائی میرے محترم چودھری اشرف چدر صاحب وہ یہاں پر تشریف فرما ہے, میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. ان کے بھائی عمران چدر صاحب اور ان کے دوست رفقا یہاں پر موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چودھری محمود احمد چدر صاحب جو ہمارے ایڈمن ڈائریکٹر ہیں, ان کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ایڈمنسٹریشن میں ہم سب لوگ کام کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. چودھری مسعود صاحب اتنے کمیٹڈ ہیں اپنے کام کے ساتھ لینڈ ڈائریکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آج بھی میں صبح 6 بجے جھنگ گیا اور الحمدللہ واپس میں 4:30 بجے وہاں سے نکلا لینڈ کے سلسلے میں کہ اس پروجیکٹ کو جو 200 ایکڑ کی اپروول کے ساتھ ہے یہ 2000 ایکڑ تک ایز ارلی ایز پاسبل پہنچا ہے. تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا لیٹ آیا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ چودھری خالد محمود چدر صاحب جو ہمارے ڈائریکٹر آپریشنز ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے میں نے نام بڑے چن چن کے رکھے ہیں. انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو بہترین ڈائریکٹر آپریشن کے رول میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئیں گے. اور میری جو ٹیم ہے الرحیم کی, جو بچے میرے ساتھ کام کر رہے تھے, میں نے ان سب کو کہا ہے کہ بیٹے اپنا اپنا کام شروع کرو. بس میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ آگے بڑھیں. تھینک یو ویری مچ جی. سید کامران علی بخاری صاحب پلیز تشریف لائیں, دعا فرمائیں, اور اس کے بعد کھانے کے لیے کافی دیر سے میں بھی حائل ہوں اور دوسرے دوست بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں عام عوام کو ذہن میں رکھ کے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا گیا ہے, تو اس کے لیے دعا بنتی ہے. جو دعائیہ الفاظ آج میں سوچ رہا ہوں کہ پڑھوں, میری خواہش ہے کہ ہر بندہ وہ یاد کرے اور وہ دعا اپنے کاروبار کے لیے, جیسے کہ ابھی یہ ہماری فیملی ہے سارے لوگ بیٹھے ہیں, اس میں پڑھیں. میرا تجربہ ہے کہ یہ دعا جو حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے ایک صحابی نے مانگی تھی جب اس نے اپنے کاروبار کے لیے اجازت چاہی نبی محتشم علیہ وآلہ الصلاۃ والتسلیمات سے, اور حضور نے کہا اسی جگہ پہ اس تھڑے پہ اپنی سبزی کی دکان لگا لو. تو وہی الفاظ میں اپنی دعا میں اختتامیہ شامل کروں گا. سارے لوگ اپنے لیے بھی کیجئے, اس پروجیکٹ کے لیے بھی کیجئے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ اجمعین وارحمنا معاہم برحمتک یا ارحم الراحمین. یا برکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعالی وانزلی ثم لا ترحلی بحرمت ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. آمین. وبجاہ نبی الرؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم. بہت شکریہ شاہ صاحب. اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف چلے گئے. سب دوستوں کا یہاں تشریف لانے کا شکریہ. چلتے ہیں جی, اپنے آخری ہماری ایکٹیویٹی ہے وہ کھانے کی طرف. سو کھانا تیار ہے جی, پلیز ہیو اے ٹیسٹی ڈنر.